Can you अतुल see जी me now? अब सब जुड़ गए हैं? सारे लोग हैं अब। हाँ तो वीसी साहब भी हैं मेरा ख्याल। हाँ सर म्यूट पे हैं शायद अभी। हाँ जयदीप जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। जयदीप कैसे हैं जी, आप? सॉरी, आज मेरा इंटरनेट जो है वो थोड़ा खराब हो गया है। जयदीप दूसरी तरफ पूरे वाईएमसीए यूनिवर्सिटी का स्टाफ है। ऑल आर से टू हेलो टू यू। नमस्कार जयदीप जी, नमस्कार। थैंक यू सो मैं मच। डॉक्टर सुनील गर्ग, रजिस्ट्रार वाईएमसीए यूनिवर्सिटी, सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। वीसी सर हाँ नमस्कार, शुरू कीजिए डॉक्टर मिश्रा। और डॉक्टर जयदीप जी का, इलावत जी का बहुत बहुत स्वागत पधारने पर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और पवन जी का भी और सभी लोगों का। और आई रिक्वेस्ट द ऑर्गेनाइजर्स टू स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स प्लीज। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। सोनिया मैडम प्लीज शुरू करिए। Yes, sir. A very good morning, Honorable Vice Chancellor Professor Dinesh Kumar, J.C. Bose University, Science and Technology, YMCA Faridabad. Distinguished guest, Dr. Pawan Singh Malik and Mr. Jaideep Ahlawat. Worthy Registrar Sir, Dr. Sunil Kumar Garg, Dean Professor Atul Mishra, faculty members, students, and all the participants present over here. On the behalf of Department of Liberal Arts and Media Studies, I, Dr. Sonia Hooda, extend a very warm welcome to all of you in this webinar, Cinema versus Web Series, Challenges and Opportunities. ये हमारे वाईएमसीए परिवार की रीत रही है कि हम अपने हर कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ करते हैं। तो आइए चलते हैं दीप प्रज्वलन की ओर। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते, दीपज्योतिर्नमोस्तुते। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। Now I request Dean Faculty of Liberal Arts and Media Studies, Professor Atul Mishra, sir, kindly expose the theme of the session. Thank you, Dr. Sonia. Good morning to everyone. First of all, I would like to welcome our Honorable Vice Chancellor, Professor Dinesh Kumar, our Registrar, Dr. S.K. Garg, our esteemed panelists, our deans, chairpersons, faculty members, students of the faculty of Liberal Arts and Media Studies, other students of the university, and many people who have joined probably outside the university this program. I welcome all of you for this program. At the outset, I would like to express my sincere gratitude to our Honorable Vice Chancellor, sir, for his support and guidance for various programs running in this faculty. Right now, we are running MA and BA program in JMC, BSc program in animation, and MA program in English literature. So, sir, support is always there for all of these programs. The events like this, his support is there, both from administrative point of view, financial point of view. So with his support, we are continuously moving and improving the faculty. We are also right now in the process of coming up with a studio, a world-class studio for our animation and media students. So for that also, sir, support is invaluable to us. For our guests today, we are very fortunate to have you, Jaideep ji, today, and our Dr. Pawan Malik ji. So we have two great personalities from the world of media today, each at the top of their individual verticals. अहलावत जी का जो आजकल वेब सीरीज का जो हिट नाम चल रहा है, सब लोग उससे वाकिफ हैं। पवन जी तो हमारे परिवार की तरह हैं, उनकी गाइडेंस, उनकी डिपार्टमेंट की तरफ जो कमिटमेंट है हमारी हेल्प के लिए, ग्रोथ के लिए, वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम फॉर दैट।
आज का जो प्रोग्राम है जैसा नाम है उसका, सिनेमा वर्सेस वेब सीरीज चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। सो बेसिक फॉर्मेट हमारा इसका एक पैनल डिस्कशन टाइप है, जिसका बेसिकली एम हमारा ये है कि हमारी लर्नर्ड सीनियर फैकल्टी डॉक्टर तरुणा इसको संचालित करेंगी, उसको चलाएंगी, और हम इस डिस्कशन के थ्रू जो क्वेश्चन वो लोग मैडम पुटअप करेंगी, उसके थ्रू हम ये डिस्कवर करना चाहते हैं कि हमारे मीडिया के स्टूडेंट्स के लिए और इन जनरल स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर स्ट्रीम्स ऑल्सो, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी, कि अब इस वर्ल्ड में क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनके लिए, क्या क्या उनके लिए अवसर आ रहे हैं जिसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं। अब जैसे इंटरनेट अब हर जगह पे है, विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट एंड इट्स प्रेजेंस एवरीवेयर, वी नो कि जो मीडिया कंटेंट की डिलीवरी है वो टोटली चेंज हो गई है। मीडिया क्या, हर चीज़ की डिलीवरी टोटली चेंज हो गई है। वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट में नॉट ओनली डिलीवरी चेंज हुई है, इवन द टाइप ऑफ और कैटेगरी ऑफ प्रोग्राम्स चेंज हो गए, और ज़्यादातर लोगों की जो कंजम्पशन है वो इस मीडियम की तरफ जा रही है, जिसको आजकल हम OTT प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं। और उसमें एक अपने ही एक नया दुनिया हो गई है साइबर स्पेस में। जो पहले हमारा एक फिल्म वर्ल्ड था, हम जानी मानी हस्तियों को जानते थे, अब ये साइबर वर्ल्ड ने बहुत नए सितारे दिए हैं हमारे को, बहुत एंटरटेनिंग और एजुकेशनल प्रोग्राम्स दिए हैं। तो डेफिनेटली इससे हमारे मीडिया स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मैं आज एक्सपेक्ट करता हूँ कि डॉक्टर तरुणा इन सबको एक्सप्लोर कराएंगी हमारे एमिनेंट पैनलिस्ट के साथ, और हम लोग देखेंगे कि क्या चीज़ें हमारे स्टूडेंट्स के लिए निकल के आती हैं इसमें से, और चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस भी अपने आप में एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो कैसे बच्चे उन चैलेंजेस को ओवरकम करके अपने आप को इसमें ग्रो कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इसके साथ मैं फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत करता हूँ, अपने गेस्ट का एक बार स्वागत करता हूँ, और माइक वापस डॉक्टर सोनिया को देता हूँ, आगे प्रोसीड करेंगे। डॉक्टर सोनिया, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir, for giving me the opportunity to introduce VC sir. Sir, ये वो मीनार हैं जिन्हें तराशा नहीं जाता, ये वो मीनार हैं जिन्हें तराशा नहीं जाता, इन्होंने जिन्हें तराशा वो मीनार बन गए। Dr. Sonia Huda, may I request you to be brief, for my introduction. I think it has been already, everyone knows, you don't have to repeat it. मैं समझता हूँ आज हमारे जो गेस्ट हैं, खासकर जयदीप रावत जी और डॉक्टर पवन मलिक, उनके बारे में बोलो, और लेट अस अवॉइड दिस। जी सर, प्लीज। जी सर। Sir, VC sir, I request you to please address the gathering. Thank you. So first of all, I would like to express my, heartiest congratulations to the Department of Journalism and Media Studies. I'm very happy that a person like Sri Jaydeep Elavazji have been, roped in for today's event, and that is possible because of, the help of Dr. Pawan Malik, who happened to be our own member in a way, because he is associated with our university in many different ways. And I'm really happy that a person like Jaydeep Elavazji, who is a big name, as I have, seen recently different kind of things he's doing. It's really very, it gives very proud feeling to all of us that he, being an Haryanvi, is a successful Bollywood star, has become a successful Bollywood star. And हरियाणा के तो बहुत सारे स्टार होते हैं, लेकिन अभी मेरे को लगता है आने वाले नए समय में जो सिनेमा वर्सेस जो मीडिया का जो नया रूप निकल के आया है, उस चीज में भी जयदीप एलावजी की काफी नई तरीके से चीजें निकल के आ रही हैं। आई एम रियली हैप्पी कि आज आप डिस्कशन करने वाले हैं नए मीडिया के ऊपर, और खासकर आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज ए यंग स्टूडेंट और यंग बॉय, हम तो लोग जाके थिएटर में फिल्म देखते थे, और बड़ी फिल्म देखने के लिए कभी कभी इतनी लंबी लाइन में लगना पड़ता था टिकट लेने के लिए, कि पता है कि शहर में एक दो ही सिनेमा हॉल हुआ करते थे। और उस टाइम को और इस टाइम के साथ कंपेयर करें तो टोटल लाइफ चेंज हो चुकी है। अभी लोग मल्टीप्लेक्स में जाते थे, लेकिन अभी वो मल्टीप्लेक्स का कल्चर भी खत्म होने लग रहा है। जो आपके हाथ में स्मार्ट जो मोबाइल, उसी की हेल्प से यू कैन डू एनीथिंग एट एनी प्लेस एट एनी टाइम। सो इस तरह की जो फ्लेक्सिबिलिटी मीडिया की वजह से हर फील्ड में बनी है,
वो एक मीडिया के स्टूडेंट्स को उसके बारे में जानकारी और उसके बारे में ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। और जयदीप अहलावत से बेटर पर्सन कोई नहीं हो सकता, बेटर पर्सनालिटी कोई नहीं हो सकता, जो हमारे स्टूडेंट्स को नए मीडिया के बारे में, नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देके उनको मोटिवेट करेंगे। जयदीप जी, हमारी यूनिवर्सिटी में वी आर ए यंग यूनिवर्सिटी दैट वे एक्चुअली इन हरियाणा। शायद आप तो हरियाणा के हैं तो आपको पता होगा हरियाणा में कुरुक्षेत्र और रोहतक यूनिवर्सिटी का नाम हुआ करता था, पुरानी यूनिवर्सिटीज है। लेकिन जो YMCA यूनिवर्सिटी जिसको कहते थे, आज का नाम उसका JC बोस हुआ है। दिस इज a relatively new university, but let me inform to the all house here that this is one of the best university in the area of engineering। और हम अभी कल ही जो ऑल इंडिया रैंकिंग जो NIRF ने डिक्लेयर की है, मुझे बताते हुए, शेयर करते हुए आपसे खुशी हो रही है कि हरियाणा में जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें हम नंबर 1 आए हैं। और दैट इज रियली मैटर ऑफ प्राउड फॉर ऑल ऑफ अस कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं इंजीनियरिंग के, वो बहुत अच्छी क्वालिटी के आते हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि अपनी यूनिवर्सिटी में भी हम एक बढ़िया सा मीडिया स्कूल बनाएं और जर्नलिज्म को, नॉर्मल पेपर जर्नलिज्म और अलग तरह के जो जर्नलिज्म पहले हुआ करता था उसके बजाय एक नए जर्नलिज्म की बात करना शुरू करें। और इसीलिए हमने आज हमारे जो डिपार्टमेंट में डॉक्टर मिश्रा हैं, जो इसको लीड कर रहे हैं डिपार्टमेंट को, आई एम वेरी हैप्पी। ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू डू मैनी गुड थिंग्स इन द यूनिवर्सिटी। एक बहुत बढ़िया ये थिएटर बना रहे हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी में, अपना उसका जो जिसमें रिकॉर्डिंग वगैरह करेंगे ये सारी, और बहुत इक्विपमेंट भी, एडवांस इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं। सो आई विल रिक्वेस्ट यू सम टाइम जयदीप जी, व्हेन यू गेट टाइम, जब आप हरियाणा में इधर की तरफ आओगे, जो नॉर्मल कोविड-19 सिचुएशन जो इम्प्रूव करके जब आवागमन हमारा शुरू होगा, मूवमेंट शुरू होगा, कि आप हमारी यूनिवर्सिटी में कभी पधारें और हमारे स्टूडेंट्स को पर्सनली आके उनको आशीर्वाद दें और अपना जो आपके जो कला है, आपने जो हुनर हासिल किया है, उससे हमारे स्टूडेंट को भी मोटिवेट करें। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आपका यूनिवर्सिटी के इस प्लेटफॉर्म पर पधारने के लिए स्वागत करता हूं, और डॉक्टर पवन का भी धन्यवाद करता हूं कि उनकी वजह से आप हमारे साथ जुड़ पा रहे हैं। और मैं ज्यादा समय अपनी चीजों में नहीं लेना चाहता, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अपने आइडियाज, अपने विचार, खासकर नए मीडिया, जहाँ पर कि जो सिनेमा का रूप चेंज हो गया है, अब तो आप जहाँ भी हो, जब भी हो, जैसे भी हो, जब देखना चाहें कुछ भी देख सकते हैं। इस तरह की टेक्नोलॉजी के साथ में आप भी उसी में काम कर रहे हैं। आपका मैंने अभी देखा कि काफी हिट आपने कुछ प्रोग्राम किए हैं, तो इन शब्दों के साथ मैं आपका दोबारा धन्यवाद करता हूँ। और थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू। Thank you so much, sir, for enlightening us with your words of wisdom. अब समय है हमारे मेहमानों का विधिवत रूप से स्वागत करने का। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर पवन सिंह मलिक जी की। सर, इस वेबिनार में आपका तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच। वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू नहीं मोहताज होती कदरदानों की। पवन जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। अभी हाल ही में आपकी एक पुस्तक का विमोचन हुआ है, नागरिक पत्रकारिता, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। आप मीडिया जगत की वो शख्सियत हैं जो ना सिर्फ, जिनके मार्गदर्शन से ना सिर्फ माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी का मीडिया विभाग, बल्कि JC बोस यूनिवर्सिटी का मीडिया विभाग भी तरक्की कर रहा है। उम्मीद करते हैं आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। डॉक्टर पवन सिंह मलिक is Senior Assistant Professor, New Media Technology Department at Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Mass Communication, Bhopal. He did his MPhil from CDLU, Sirsa. He did his doctorate from Kurukshetra University, Kurukshetra, Haryana. He qualified NET in 2011 in Mass Communication and Journalism. He has worked in the national news channel Zee, Sadhana channel, and as a faculty in JIMS, Vasant Kunj, New Delhi. He has 12 years of teaching experience. He teaches communication, social media, new media, video editing, and filmmaking. His interest areas are social media, electronic media, and mass communication. Sir, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत आप सबका। हमारे आज के अगले मेहमान हैं, और या यूं कहें कि हमारे आज के इस वेबिनार के हीरो
जो कि असलियत में भी हीरो ही हैं। जयदीप अहलावत जी, आपका हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू मैम। सर, आपने अपने हर किरदार को इतना बखूबी निभाया है कि अगर उन सबकी चर्चा करने लगे तो शायद ये दिन भी कम पड़ जाए। दुआओं में अपनी असर आ गया है, दुआओं में अपनी असर आ गया है, जिसे चाहते थे वो मेहमान इस वेबिनार पर आ गया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, आपके अलग अलग किरदारों की हमने एक छवि अपने एक वीडियो में पिरोने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। जी। ट्रेनिंग से पहले कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस आपको बता दी जाए कि एज अ फील्ड एजेंट जो इन्फॉर्मेशन आपको हासिल हो आप उसे आगे पास करते रहिए। आँख और कान हर वक्त खुले रहें। बॉलीवुड के सितारों के बीच अपनी एक अलग जगह बनाने वाले जयदीप अहलावत आज एक्टिंग में अपना करियर देखने वाले युवाओं की प्रेरणा बन चुके हैं। हाय, दिस इज जयदीप अहलावत। अपनी एक्टिंग से किरदारों को जिंदा कर देने वाले जयदीप की खुद की कहानी भी लोगों को काफी मोटिवेट करती है। 20 किलो दा है तू कपड़ों समेत, तेरे ऊपर तो गोली वेस्ट होने का डर भी नहीं है। मैनू आर पार निकल जाएगी, माल से पूछ के दोबारा यूज कर लेनी मैंने। नॉन फिल्मी बैकग्राउंड होने के बावजूद जयदीप ने हरियाणा के गांव से बॉलीवुड तक का सफर तय किया और कामयाब भी हुए। टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से पढ़ाई करने के बाद जयदीप ने 2010 में आक्रोश और खट्टा मीठा फिल्म से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। चाहे गैंग्स ऑफ वसीपुर के शाहिद खान हो या फिर कमांडो के AK-47, राजी के खालिद मिर हो या फिर पाताल लोक के हाथीराम चौधरी, जयदीप ने हर एक किरदार को बखूबी निभाया है। नाम इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी, थाना आउटर जमुना पार, और काम पाताल लोक की कीड़ों को धर के इस धरती लोक को बचाना। क्योंकि कीड़ा जितना मर्जी नहीं है, एक दिन सरकारी बूट से रगड़ा जाता है। जयदीप का मानना है कि मूवीज हो या रियल लाइफ, कैरेक्टर्स पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होते, ये तो बस हमारा नजरिया होता है उनको देखने का। YMCA के इस वेबिनार में आपका तहे दिल से स्वागत है। नाउ सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Now I hand over the stage to Dr. Taruna Narula to moderate the session. थैंक यू डॉक्टर सोनिया। तो आइए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हमारे साथ मीडिया जगत की दो बेहतरीन हस्तियां जुड़ी हैं। उनमें से एक हमारे साथ है डॉक्टर पवन सिंह मलिक, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से है, और दूसरे बेहतरीन शख्सियत है मीडिया जगत की, सिनेमा जगत की और न्यू मीडिया जगत की, जयदीप अहलावत, जिन्होंने बॉलीवुड में तो अपनी एक्टिंग से, अपने काम से, अपने हुनर का लोहा मनवाया ही है, साथ ही आजकल वो चर्चा में है, बेहद चर्चा में है अपनी लेटेस्ट सीरीज पाताल लोक को लेकर। तो आप सबका स्वागत है इस सेशन में। सबसे पहले तो मैं इस सेशन में आप सबका स्वागत करती हूँ और आपको बताना चाहूँगी हम सब ऑडियंसेस को कि आज के इस वेबिनार में हम लोग बात करेंगे वेब सीरीज और सिनेमा के दोनों पहलुओं के बारे में, कि इनमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, इस सब के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। और साथ ही ये फ्लोर जो है ऑडियंस के लिए भी बीच बीच में हम लोग ओपन करेंगे। जिसको भी अपना क्वेश्चन पूछना हो, प्लीज़ रेज योर हैंड एंड देन वी विल टेक अप योर क्वेश्चन। तो सबसे पहले सेशन की शुरुआत में मैं जयदीप अहलावत जी को बधाई देना चाहूँगी उनकी लेटेस्ट रीसेंट सक्सेस पाताल लोक की सीरीज पर। स्वागत है आपका जयदीप जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। या सर, बहुत अच्छा लगता है देख के कि हरियाणा के स्टार्स बहुत छा रहे हैं हर जगह पर। और सर मैं बस हम लोग आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने सिर्फ बॉलीवुड में भी काम किया, आपने वेब सीरीज में भी काम किया, तो सर ये जर्नी आपकी कैसी रही, कैसे आपके एक्सपीरियंसेस रहे, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस प्लीज शेयर करिए। जी, एक तो थैंक यू सो मच यहाँ बुलाने के लिए, और बड़ा अच्छा लग रहा है आप सब लोगों से इस तरह से बात करके, और सभी का धन्यवाद जो जुड़े हुए हैं। और
थैंक यू इतना सारा अप्रिशिएट करने के लिए। और हाँ, वो जहाँ तक अभी सिनेमा और वेब सीरीज की बात है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, क्योंकि दो अलग उस पे प्लेटफॉर्म पे जाके आपका काम जी पहुंचता जी है, तो जी हाँ जी वो एक अलग चीज है। बट मुझे लगता है कि एज एन एक्टर ज्यादा फर्क महसूस नहीं होता जब आप करते हो, क्योंकि एज एन एक्टर इट्स योर जॉब टू प्ले द या कैरेक्टर्स एज ट्रूथफुली एज यू कैन। सो वही वही काम करना होता है, बाकी वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाए वो बात की एक बात है, बात की डिसाइड बात है। होता है। हाँ जी। हाँ जी, नहीं नो डाउट, बहुत ही अच्छा आपने हर भूमिका को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है। और खासकर पाताल लोक में तो एक बार को भी ये नहीं लगा कि ये इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी नहीं है, ये जयदीप अहलावत है। बहुत ही ऑनेस्टली आपने उस भूमिका को निभाया। थैंक यू। सो ऑल प्रेज टू यू। सो इसके साथ ही मैं पवन सर से भी ये जानना चाहूँगी कि पवन सर, आप सिनेमा और वेब सीरीज दोनों से ही जुड़े हैं, सिनेमा को भी हम बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं, क्या डिफरेंशिएट देखते हैं दोनों ही फॉर्मेट्स में, सिनेमा में और वेब सीरीज में, इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्ट राइटिंग, इन टर्म्स ऑफ साउंड डिजाइन, क्या आपको लगता है क्या डिफरेंसेस हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जयदीप ने भी कहा, जब हम किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए काम करते हैं तो उसी जी प्लेटफॉर्म के लिए पैशन जो है वो अपने को उतना ही चाहिए होता है। हाँ जी हाँ जी लेकिन जब आप सिनेमा की बात करते हैं तो सिनेमा में आपके पास 2.5-3 घंटे जो है उसके हाँ जी अंदर हाँ आपको जी लोगों को बांध के रखना होता है, लेकिन वेब हाँ सीरीज जी के हाँ साथ जी ये एक बॉन्डेज नहीं है। जी वेब जी सीरीज में एपिसोड हैं, एपिसोड 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट के जी जो जी एपिसोड हैं, हाँ तो जी मुझे हाँ जी लगता है कि वेब सीरीज की जो ग्रिपिंग पावर है वो वेब हम्म। सीरीज की ज्यादा है। अच्छा तो इफ वी टॉक अबाउट अ स्क्रीन प्ले, इफ यू टॉक अबाउट अ साउंड डिजाइन, तो कहीं ना कहीं वेब सीरीज एक बांध के रखने का जो काम करती है वो वेब सीरीज ज्यादा काम करती है। अच्छा और दूसरा मुझे एक ऐसा लगता है कि जो डिपेंडेंसी है वेब सीरीज जी के अंदर, कहीं पे भी डिपेंडेंसी नहीं है। वेब सीरीज में आप ओपनली जो है वो अपने विचारों को, अभी अपनी अभिव्यक्ति जी को जता सकते हैं। तो मुझे लगता है दिस इज द बेनिफिट ऑफ अ वेब सीरीज प्लेटफॉर्म। जयदीप सर, आपका क्या मानना है, क्या आप भी पवन सर की इस बात से सहमत हैं कि नहीं, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि मतलब अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है वेब सीरीज, जिसमें कोई रोक टोक नहीं है, जैसे सिनेमा में सेंसरशिप रहती है, सीरियल्स में भी बंधन रहते हैं, आपका क्या मानना है किस तरीके से ये पावरफुल मीडियम बनता जा रहा है, क्यों बनता जा रहा है वेब सीरीज इतना पावरफुल मीडियम? जी, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कहा पवन ने भी, क्योंकि क्या है ना कि एक तो आपका अपना सिर्फ अपना मीडियम नहीं है, एक ग्लोबल मीडियम जी है जहां दुनिया भर जी के लोग जी आपको देख रहे हैं। तो हाँ, क्या ये तो होता है। है, जैसे ही आप वो देखते हो, जैसे ही ऑडियंस उसको देखती है, जी तो आपको उस स्टैंडर्ड को मैच करना पड़ेगा। जैसे हम हाँ मानते हैं कि वेस्ट वेस्ट का सिनेमा यस हमसे यस बहुत बेहतर है, मतलब ये हाँ माना हाँ जाता है जनरली, और वो है भी एक तरह से कहा जाए तो। जो उनकी टेक्निक, उनकी जो स्टोरी टेलिंग होती है, वो हमसे ज्यादा, जैसे अभी अभिव्यक्ति की बात हो रही थी, वो ज्यादा अभिव्यक्त कर पाते हैं अपनी बातों को। जी जी उनके जी वो अपने एडल्ट्स को एडल्ट्स की तरह बिहेव करते हैं उनके साथ। ऐसा नहीं है कि वो, जी हमारे यहाँ 20-24-25 साल तक के बच्चों को भी घर में बच्चे की तरह ही ट्रीट किया जाता है। तो हाँ तो वो अपने एडल्ट्स को थोड़ा ये एडल्ट तो की है, तरह बिहेव करते हैं, और उनको उनको वो बिल्कुल छूट सही। देते हैं कि भाई आप समझो कि सही हाँ और हाँ गलत क्या है। दे टॉक टू द जी जी चिल्ड्रन, हाँ, 5वीं ये बात तो 6वीं है। 7वीं क्लास तक के बच्चों को वो किसी भी विषय पे बात कर सकते हैं, और एक एक कम्युनिकेशन एक बेटर होता है। और आप मीडिया एंड कम्युनिकेशन के लोग हैं, और आप समझते हैं कम्युनिकेशन की कितनी कितनी अहमियत होती है लाइफ में। अगर वो सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन हो तो भी खराब है, और वो हाँ, कम्युनिकेशन जो है वो बंधा हुआ हो और उसके अपने ही सीमित दायरे हो, तो वो भी कोई हुँ, खास फर्क नहीं देने वाला है। हुँ, तो आई थिंक जो एक प्लेटफॉर्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म की एक तो जो लेंथ होती है, वो राइटर को एक बहुत ज्यादा लिबर्टी देती है कि आप अपने राइट, किरदारों को, राइट। अपनी कहानी को ज्यादा ज्यादा इंटरेस्टिंग, या फिर ज्यादा यू नो फैलाव के साथ आप उसको बता सकें। आप एक आप एक नॉवेल पढ़ते हैं, किसी का भी, प्रेमचंद जी का एक जी, फॉर एग्जाम्पल एक नॉवेल हाँ पढ़ते हैं, तो जी, हाँ आपको जी। समझ में आता है, तो वो हाँ, पूरे हाँ। किरदारों की पूरी जर्नी आपको दिखाई दे रही होती है। तो आई थिंक हाँ ये जी, ओटीटी हाँ प्लेटफॉर्म जी। के पास एक 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 बड़ा एक फायदा है उनका, कि उनके पास एक तो लेंथ होती है, दूसरा उनकी ऑडियंस जो है वो वर्ल्ड वाइड बैठी है। सो जी, वो कोशिश करते हैं कि बाहर राइट, की, राइट, आप राइट। जैसे पाताल लोक की ही बात करूं, तो बहुत सारे ऐसे अमेरिका जी। से, कनाडा से, जर्मनी, स्पेनिश लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं इंस्टाग्राम पे कि ओह! दैट्स they सो गुड। watched it and they loved this, and they never believed, in the sense, they never thought that this is an Indian web हाँ, series, so they loved it. नो डाउट कि पाताल लोक मैंने खुद भी देखा,
एकदम क्रिस्प है उसके सीन्स, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि आप बोर हो रहे हैं। इनफैक्ट आई वुड शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस। एक बार जब इंस्पेक्टर हाथीराम का जो 7th एपिसोड में या 8th एपिसोड में जब वो कैचअप हो जाते हैं, उनको पकड़ लेते हैं गुंडे, तो मैंने उसके आगे का एपिसोड देखा नहीं, इस डर के मारे रुक गई कि कहीं इंस्पेक्टर हाथीराम को किल तो नहीं कर देंगे। आई वाज सो ऐसा, मतलब एवरीवन फील्स सो एसोसिएटेड विद द कैरेक्टर्स। लाइक इन सिनेमा क्या होता है कि जो आपके प्रोटैगनिस्ट हैं उसके साथ आप लोग एसोसिएटेड फील करते हैं, but in web series I personally found that we were like we were as an audience I was associated with everybody, चाहे वो हाथीराम थे, चाहे वो डीसीपी थे, हर किसी के अपने अपने किरदारों की भूमिका बिल्कुल स्पष्ट हो रही थी, तो बहुत अच्छा था। तो जयदीप जी, आपको क्या लगता है कि ये जो वेब सीरीज का नया ट्रेंड आया है, किस तरीके से ये हमारी मीडिया इंडस्ट्री में चेंज लेकर आएगा? अभी भी इन्होंने हलचल तो मचा दी है, किस तरीके से और ये चेंजेस लेकर आएंगी वेब सीरीज? मुझे लगता है मैम कि एक ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है, वर्ल्ड वाइड ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है, और हम उस प्लेटफॉर्म पे उतना एक्टिव अभी तक नहीं है। पिछले 2-3 सालों से ये कुछ ज्यादा चला है, और अभी स्पेशली ये जो लॉकडाउन पीरियड रहा, ये जो कोविड-19 का जो एक दौर रहा है, इसमें वो ज्यादा हो गया, क्योंकि लोग सब हम घर पे बैठे हुए हैं। तो एक मीडियम था जिसके थ्रू आप लोगों को ज्यादा बाहर का और अपना काम देखने का मौका मिला है। तो मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा वो ये है कि मुझे लगता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट काफी बड़ा मार्केट है किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ ऑडियंस अभी भी परसेंटेज वाइज अगर कहूँ मैं, जितने देश की जनसंख्या है उसका कितना परसेंटेज लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को एज एन एंटरटेनमेंट या फिर फिल्म मेकिंग के लिए, या जो स्टूडेंट है वो किस तरह से वो देखते हैं, बहुत कम लोग हैं। और हमारी पॉपुलेशन इतनी है कि अगर इन प्लेटफॉर्म्स को पता है कि अगर हम 10% भी जुड़ पाए तो हम आधे यूरोप पे भारी पड़ेंगे, समझ रहे हैं आप? ये तो है। तो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बहुत है, नो डाउट। हाँ, तो जी, वो ग्रो करेगा, बताया कि ये ग्रो करेगा, बिल्कुल सही बात है, ग्रो करेगा और ग्रो कर भी रहा है। तो पवन सर, जिस तरीके से ये वेब सीरीज या जो ओटीटी प्लेटफॉर्म से ग्रो कर रहे हैं, क्या लगता है कि आने वाले टाइम में हम लोग इसको भी अपने करिकुलम में पढ़ाएंगे? जिस तरीके से हम लोग सिनेमा पढ़ाते हैं, जिस तरीके से हम लोग टेलीविजन के बारे में पढ़ाते हैं, क्या लगता है आने वाले दिनों में हम इसको भी पढ़ाएंगे, वेब सीरीज को भी, इसकी प्रोडक्शन की प्रोसेस को भी समझाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि एज ए मीडिया स्टूडेंट्स, हर ऐसा नया प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर लोग ज़्यादा से ज़्यादा जा रहे हैं, उन सब प्लेटफॉर्म्स को स्टूडेंट्स को पढ़ाना ही चाहिए, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि स्टूडेंट्स को अपडेट रखना, दैट इज अ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर मीडिया इंस्टीट्यूट्स। तो जैसा आपके टाइटल में भी है कि अपॉर्चुनिटीज, वेब सीरीज के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज है इस प्लेटफॉर्म के कारण मिल रही है। मैं भी एक रिसर्च पढ़ रहा था, उस रिसर्च पे ये है कि अभी तक लगभग 40 करोड़ जो मोबाइल फोन हैं उसके ऊपर ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है उसके ऊपर लोग इन सब चीजों को, वीडियो स्ट्रीमिंग को देखते हैं। लेकिन अगले 3-4 सालों में ये आंकड़ा जो है वो 100 करोड़ के लगभग पूरे वर्ल्ड वाइड जो है वो जाने वाला है। तो अपॉर्चुनिटी के कारण भी मुझे लगता है, और दूसरा इसकी जो रीच है, आप कहीं पर भी कभी भी किसी भी टाइम जो है आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा बेनिफिशियल मीडियम है, और स्टूडेंट्स को क्योंकि इंडस्ट्री में जाना ही है, मीडिया स्टूडेंट्स, या वो स्क्रिप्ट राइटिंग करेगा, वीडियो एडिटिंग करेगा, सिनेमेटोग्राफी करेगा, डायरेक्शन करेगा, तो उसको हर प्लेटफॉर्म के डूज एंड डोंट्स पता होना चाहिए, ताकि जब वो लाइफ में अपना करियर बनाए तो कम से कम उन सब चीजों का प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव जो है वो स्टूडेंट्स को पता हो। तो दैट विल बी ए बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स। और उसको ये भी लगता है कि ये सारा मैंने अपने करिकुलम में कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। जब कोई भी चीज, जयदीप को याद होगा कि हम लोगों ने मीडिया की पढ़ाई की है, उस समय जब हम लोग इंडस्ट्री में गए थे तो हमें कभी कभी ऐसा लगता था ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है मीडिया में अपने करिकुलम के दौरान, तो हमें सब कुछ नया सा लगता था। लेकिन आज अगर हम मीडिया करिकुलम में इन सब चीजों को ऐड ऑन करते हैं तो दैट विल बी ए बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट आल्सो। तो हमारी ऑडियंस भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। ऑडियंस में से एक सवाल है अब आपके पास। एक अंकुर नाम का हमारा बीजेएमसी का स्टूडेंट है, ही वांट्स टू आस्क क्वेश्चन। माइक ऑन कर दो अंकुर का। अंकुर? यस मैम। हाँ अंकुर, आप कुछ पूछना चाहते थे, क्या आपका क्वेश्चन है? प्लीज ओपन ऑन योर वीडियो। यस सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि मतलब अंकुर पहले वीडियो ऑन करो।
अंकुर आप पहले अपना वीडियो ऑन Yes, sir, करें yes, और sir. दूसरी बात आप बताएं आपका क्वेश्चन किससे है? Obviously है, today's this movie's actor is Jaideep Ahlawat. Obviously question. जयदीप सही है? मेरा सर जयदीप अहलावत सर से ये है कि मतलब वेब सीरीज आजकल इतनी ज्यादा वायलेंस होता है उसमें, मतलब इतनी एब्यूसिव लैंग्वेज होती है उसमें, काफी कुछ होता है, तो उससे यंगस्टर्स को क्या सिखाया है, क्योंकि उसमें डेथ इतनी इजीली मर्डर कर दिया जाता है कि लोगों के अंदर जो मतलब लाइफ की इंपॉर्टेंस होती है यंगस्टर्स के अंदर, वो काफी लोगों के अंदर कम होती जा रही है, क्योंकि इतनी इजीली मर्डर कर दिया जाता है उसमें। अंकुर जी अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा। मैं फिर से यही कह रहा हूँ कि अपने दिल पे, सच में दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि आपने इस तरह के अब्यूसिव लैंग्वेज या इस तरह के मर्डर्स जो इतने ब्रूटल या क्रूर या इतने हैवानियत भरे होते हैं, इससे पहले समाज में नहीं देखे हैं? कभी नहीं पढ़ा, कभी नहीं सुना? बट फिर भी सर, नहीं सर पढ़े हैं, मैंने सुना भी है, देखा भी है सर मैंने वीडियोस भी यूट्यूब पे, बट फिर भी सर वेब सीरीज आजकल यंगस्टर्स के अंदर काफी पॉपुलर हो रहा है, तो इससे हम पॉजिटिव मैसेज क्या यंगस्टर्स के पास वेब सीरीज दे रहा है, क्योंकि इसमें ज्यादा नेगेटिवनेस ज्यादा क्या होता है ना अंकुर, हर एक चीज के ना पॉजिटिव दिखाने के बजाय उसके नेगेटिव दिखाने भी उतने ही जरूरी हैं। ये वैसी बात है कि हम अपने बच्चियों को, हम अपने घर में, हम अपनी लड़कियों को जब बोलते हैं कि यार ये लड़के छेड़ते हैं, और हम उन लड़कियों को बोलते हैं कि ठीक से कपड़े पहना करो, पर हम लड़कों को कभी नहीं बोलते कि यार ढंग से बिहेव किया करो अपनी औरतों के साथ, जो भी आप आसपास आपकी औरतें हैं। क्या होता है ना कि सिर्फ एक चीज का जो पॉजिटिव चेहरा होता है ना, सिर्फ वो दिखाने से आपको कभी भी ये पता नहीं चलेगा कि उसमें नेगेटिव क्या था। और वो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि आप ओपिनियनेटेड नहीं हो, आपने एक ओपिनियन नहीं बनाया है कि ये सही है या ये गलत है। वो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और आपको देख के उसमें महसूस होता है कि यार ये गलत है, दिस इज नॉट राइट, ये सही नहीं है, ये ऐसा खून नहीं होना चाहिए था, ये कत्ल नहीं होने चाहिए थे, ये लोग भूखे नहीं मरने चाहिए थे। जो भी जिस भी तरह का आपको लगता है कि उसमें क्रूरता है या वो जो भी तो क्या है, दोनों ही चेहरे दिखाने बहुत जरूरी हैं। और स्पेशली आप मीडिया के स्टूडेंट हैं, आपको ये बात बहुत अच्छे से जानकारी होगी कि जो पत्रकारिता का जो मुझे लगता है सबसे जरूरी हिस्सा है, वो ये है कि आप समाज के सामने सिर्फ वो नहीं रखें जो अच्छा हो रहा है, वो भी रखें जो ठीक नहीं हो रहा है, और फिर लोगों को सोचने दे, समझने दे, उनके अंदर एक शक्ति क्रिएट करने। फिर से मैं वही कह रहा हूँ, क्या आप हम अपने बच्चों को हमेशा जिंदगी भर के लिए उनको इस शेल में रखना चाहते हैं कि उनके आसपास सब कुछ अच्छा चल रहा है, और हम उनको कभी नहीं बताएं कि ये बुरा है और इसको बुरा मानो, इसको सीखो कि ये बुरा कैसे है। ये समझना बहुत जरूरी है। और जब तक बच्चे को बुरा नहीं दिखाओगे, बात ये नहीं है, बात उसमें भी है, सेल्फ सेंसरशिप है। वो बताता है कि 18 साल से बच्चों के ऊपर के लिए है। अगर हमारा 18 साल का युवा ये समझ सकता है कि इसको सही वोट देना है, किसको गलत वोट देना है, वो सही और गलत की पहचान कर सकता है, तो क्या उसको इस तरह से ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए कि उसको ये समझ में आए कि ये सही और गलत क्या है? तो हमेशा किसी कहानी का एक पहलू दिखा नहीं पाओगे आप। क्या होता ना कि अगर रावण को नहीं दिखाया तो राम कभी भी बड़े नहीं हो पाएंगे। समझ रहे हो आप मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? जी। तो ये ऐसा कुछ है। ये ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए है, यहाँ सेल्फ सेंसरशिप है, आप खुद जिम्मेदार हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। हो गया अंकुर आपका सवाल, तो शैल वी मूव। तो ऑडियंसेस और भी आपके सवाल है, बट वो हम थोड़े टाइम के बाद लेंगे। तो जयदीप सर, हम लोग बात कर रहे थे कि सिनेमा में और वेब सीरीज में अंतर क्या आ जाता है, और आपने बताया कि ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है और एनीबॉडी एंड एनीवेयर वी कैन सी दिस। और वो सेल्फ सेंसरशिप के साथ आता है ना, वो डिक्लेरेशन के साथ आता है, प्रॉपर डिक्लेरेशन के साथ आता है। हाँ, डिक्लेरेशन। हाँ जी। तो जिस तरीके से सर हम लोग बात करते हैं सिनेमा को और वेब सीरीज को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं या हमको डिस्कशन कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि कितनी गहराई है सिनेमा में और इसमें, कि मतलब लाइक सिनेमा में जैसे हम लोगों को बहुत अच्छी फिल्म मिली है, शतरंज के खिलाड़ी मिली है, फातिह पंचाली मिली है, भुवन शो मिली है, रजनीगंधा है। क्या लगता है कि आने वाले टाइम में भी क्या वेब सीरीज भी इतना अच्छा और इतना गहरा कंटेंट प्रोड्यूस कर पाएंगी? होप सो मैम, उम्मीद तो जरूर है, क्योंकि क्या है ना कि आपकी चीजों का ऑडियंस भी अब ज्यादा क्या कहते हैं ना, ज्यादा समझदार हो गई है, उनके पास ज्यादा ऑप्शंस हैं अच्छे काम देखने के। अगर आप किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं जो वर्ल्ड वाइड है, फॉर एग्जांपल अमेज़न है, अगर मैं पाताल लोक की बात, अमेज़न पे वर्ल्ड वाइड लोगों की सीरीज हैं,
तो जो ऑडियंस है जो वो देख रही है कि यार एक वेब सीरीज जो बाहर शायद फॉर एग्जांपल जर्मन कोई है या कोई कोरियन आदमी है उसने बनाई है, और आपको समझ में आता है कि दे आर वे अहेड ऑफ अस in terms of storytelling, in terms of honesty, in terms of everything, you know. Yes, they have better stories. अगर उनके पास कहानी अच्छी है और वो ज्यादा अच्छे तरीके से बता रहे हैं तो क्या होगा, ऑडियंस आपका कंटेंट छोड़ के वो देखेगा. Naturally. As simple as that. Yes. तो उन लोगों को आपको एंगेज करने के लिए आपको बेटर कहानियां लिखनी पड़ेंगी, आपको ज्यादा अच्छा सिनेमा लिखना पड़ेगा, आपको ज्यादा रियलिज्म लिखना पड़ेगा, आपको ज्यादा ऑनेस्टी दिखानी पड़ेगी उसमें. आप जैसे अभी थोड़ी देर पहले अंकुर की बात कर रहे थे. जी. इतना सा वर्ल्ड है, मीडिया की वजह से आप सब जानते हैं वर्ल्ड में क्या हो रहा है. तो उनको पता है इंडिया में क्या हो रहा है, और अगर हम उनको ये बताएंगे कि हमारे यहाँ तो देखो सब कुछ एकदम सब कुछ धुला धुला सा है, तो वो नकार देंगे क्योंकि उनको पता है हम झूठ बोल रहे हैं. तो कहानी में भी नकार देंगे वो. लेकिन पवन सर, मेरा आपसे ये जानने का मकसद था कि जब तो जयदीप सर बता रहे हैं कि वेब सीरीज बहुत अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर रही है, वो चाहे कहीं की भी वेब सीरीज हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं की भी हो, और अगर वो अच्छा कंटेंट दे रही है, अच्छी स्टोरी टेलिंग है, तो ऑडियंस उसकी डेफिनेटली मूव करेगी ही करेगी. लेकिन मेरा ये था कि जिस तरीके से इंडिया के अंदर पॉपुलेशन बहुत है और हमारी लेकिन इंटरनेट के लिए एक्सेस कम है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि ये वेब सीरीज सिनेमा को कितना इफेक्ट कर पाएंगी या हमारी ऑडियंस को कितना इफेक्ट कर पाएंगी? ये जो वेब सीरीज है सिनेमा को किस तरीके से इफेक्ट कर पाएंगी? मैडम, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज जो है, कोई भी जो प्लेटफॉर्म है, उसकी अपनी एक रीच है, उसकी अपनी एक एडेप्टेबिलिटी है, उसकी अपनी एक एक्सेस है, उसकी क्रेडिबिलिटी है. सिनेमा की क्रेडिबिलिटी अपनी है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के कारण, जो मैंने पहले भी कहा, कि वेब सीरीज की जो रीच है वो बहुत ज्यादा हो गई है. और वेब सीरीज के कारण एक जो सेट मैकेनिज्म जिसको हम कहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से टूटा है. अब पहले हम मानते थे कि बाहुबली मूवी आने के बाद हमें सोचते थे कि 100 करोड़ का क्लब अगर कोई मूवी होगी तो वो प्रॉफिट के अंदर वो जो मूवी होगी वो नेम फेम होगा. लेकिन आप वेब सीरीज के आने के बाद देखिए कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के कारण, और मुझे एक चीज और लगती है कि सारे के अंदर पिछले 4-5 सालों में जो मोबाइल पेनिट्रेशन और डाटा एक्सेस जो है, उसके कारण रीच बढ़ी है. अभी आप देखिए कि हर रोज हम लोग 1.5 से 2 GB फ्री डाटा जो है यूज करते हैं. तो मुझे लगता है कि टाइम के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती हैं, प्लेटफॉर्म्स भी बढ़ते हैं, और नो डाउट आईटी के सेक्टर में इन सब चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए भी, जैसे मैंने कहा कि 40 करोड़ अभी स्मार्टफोन के ऊपर हम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को देखते हैं, आने वाले 2 सालों में 100 करोड़ हो जाएगा. तो ये केवल एक पाथ नहीं है. मुझे लगता है कि इस एक पाथ के कारण बहुत सी चीजें जो है वो सेट होने वाली है. बहुत सही, बिल्कुल सही. हाँ जी, तो ऑडियंसेस हमारी फिर से हैंड रेस करिए. वी विल गो बैक टू ऑडियंसेस अगेन. अंकुर, ये मौसम जायसवाल है, उनका आप माइक अनम्यूट कर दें प्लीज. मौसम जायसवाल का माइक अनम्यूट कर दें, वो हैंड रेस कर रहे हैं. यस मैम, डन. राइट. मौसम, अपना प्लीज वीडियो ऑन करिए एंड आस्क योर क्वेश्चन, एंड प्लीज बताइए कि आपका क्वेश्चन किससे है, पवन सर से है या जयदीप जी से है. मौसम, आपका साथ नहीं आ रहा. मौसम, आपकी आवाज आ नहीं रही है. मैडम, किसी और का क्वेश्चन ले लीजिए. यस, वी कैन मूव टू रचना कासना मैम. हमारे साथ डीएवी कॉलेज की एक मैम फैकल्टी जुड़ी है, रचना कासना, हम उनसे जुड़ेंगे. अब अंकुर, रचना कासना मैम का माइक अनम्यूट कर दो. आज के प्रोग्राम से जुड़े सभी विद्वजनों को प्रणाम. मैं एक मीडिया स्टूडेंट हूँ. मैं भी मोतिहारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मीडिया स्टडीज में रिसर्च कर रहा हूँ, पीएचडी स्टूडेंट. हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, हाँ जी, आ रही है. हेलो, आपकी आवाज कट कट के आ रही है. हेलो, हेलो, आपकी आवाज कट कर आ रही है. मैडम, आप किसी और का क्वेश्चन ले लीजिए. उनको बाद में विवेक पांडे को ले सकते हैं हम लोग. विवेक पांडे.
जयदीप सर नमस्कार। नमस्कार पांडे जी। सर जी मैंने पाताल लोक देखी आपकी, और मेरा क्वेश्चन मतलब आज पहली बार आपसे मिलने को मिल रहा है सर। वो कैरेक्टर कितना शानदार था, मतलब आप चित्रकूट में जो फिल्माया है कैरेक्टर आपका हाथीराम चौधरी का, तो थोड़ा सा 2 शब्द उसके लिए सर, क्योंकि हम लोग बहुत करीब से जब आपको देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। मतलब आप कहना चाह रहे हैं जो चित्रकूट में जो हाथीराम बिहेव करता है उसके बारे में बात कर रहे हैं? जी सर, मतलब एक गुड़गांव का सॉरी एक मतलब दिल्ली एनसीआर का पुलिस ऑफिसर वो चित्रकूट जाता है, तो वो रोल कितना मुश्किल था आपके लिए? देखिए, आप अगर आपने ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा आपने देखी है ना, तो चित्रकूट एक हाथीराम के लिए एक बहुत ही हॉस्टाइल जगह है। वो नहीं जानता है वहां के बारे में क्या होता है क्या नहीं होता है। और कमाल की बात है कि वो ऑलरेडी पहली बार जब जाता है तब फिर भी ठीक है, नॉर्मल पूछताछ के दौरान उसके पास एक पुलिस का कार्ड है, अपनी गन है। लेकिन जब सेकंड टाइम या उसके बाद जाता है तो वो ऑलरेडी सस्पेंडेड है। तो मुझे लगता है कि वो जो एक चीज दिमाग में रखता है हाथीराम अपने, कि अगर यहाँ पकड़े गए तो पूरा केस खराब हो जाएगा, धुल जाएगा, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। तो चित्रकूट का जो जितना भी मैक्सिमम शूट था, एक तो ऑफ कोर्स चित्रकूट में शूट हुआ है तो बहुत ज्यादा गर्मी थी, फिजिकली बहुत डिमांडिंग था, क्योंकि एक तो पहले वेट बढ़ाया गया और उस वेट के साथ अब फिर अब मैक्सिमम जो है रनिंग सीक्वेंसेस हैं या फाइट सीक्वेंसेस हैं या जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस हैं वो सब चित्रकूट में हुए, और फिजिकली बहुत डिमांडिंग था। उसके साथ साथ वो मेंटली डिमांडिंग इसलिए था क्योंकि चित्रकूट हाथीराम के दिमाग में उलझ गया है। वहीं से उसको वो कड़ी मिलने वाली है जिससे समझ में आएगा कि ये ऐसा क्यों हुआ, जो भी ये घटना हुई है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था। करीबन 20-25 दिन शूट किया गया और बड़ी मेहनत वाला थोड़ा काम हो गया था उसको समझना। अगर आप उसके मतलब ये इन नटशेल तो यही है। अगर किसी स्पेसिफिक कोई बात पूछना चाह रहे हैं तो वो बात है, बता सकते हैं आप। विवेक, आपका कुछ और है क्वेश्चन? तो अब मूव करते हैं डीएवी कॉलेज की लेक्चरर फैकल्टी मेंबर रचना कास्ना की ओर। रचना कास्ना हमारे साथ जुड़ी। रचना कास्ना, प्लीज ओपन योर माइक, ओपन योर वीडियो। अंकुर, रचना कास्ना मैम का वीडियो ऑन कर दो और माइक भी अनम्यूट कर दो इनका। हेलो एवरीवन। जयदीप हलावत जी नमस्कार। नमस्कार मैम, नमस्कार। हाँ, एक्चुअली सर अभी मेरा क्वेश्चन सिमिलर सा ही है जो अंकुर ने पूछा था, कि आजकल वेब सीरीज में बहुत ज्यादा वायलेंस दिखाते हैं, जो कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए अच्छा नहीं है। इवन एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो गया। तो डोंट यू थिंक कि एक जिस तरीके से एक सेंसर बोर्ड सिनेमा के लिए वैसे ही वेब सीरीज पे हो? नहीं मैम, फिर क्या है ना कि फिर बच्चों को आप मीडिया तो पढ़ाओ ही मत, क्योंकि मीडिया तो बिल्कुल बहुत ही गलत फील्ड में है वो बच्चे, क्योंकि वो कुछ ऐसा देखेंगे, ऐसे मिलेगा उनको। सर वो मैं बात बिल्कुल एग्री करती हूँ। अब सर मुझे ऐसा लगता है हमें उसी सिनेमा की तरफ रुख करना चाहिए जो हम कभी 80s में और 70s में देखना चाहिए था, क्योंकि जब बहुत ज्यादा पॉजिटिव देखेंगे तो फिर मैम ओटीटी प्लेटफॉर्म भी बदल देते हैं ना। फिर हम ओटीटी प्लेटफॉर्म छोड़ देते हैं, सब अमेज़न और सब नेटफ्लिक्स डिलीट कर दो अपने फोन से। अब ऐसा हो नहीं सकता ना कि आप दोबारा 80s में जाएं। 80s की फिल्में मैं गिनाऊंगा आपको, आप उनमें से बताएंगे कि कौन सी ऐसी कहानी है। मैं आपको एक लिस्ट दूंगा, हो सकता है अभी लेके नहीं बैठा हूं, पर मैं 80s की आपको लिस्ट दूंगा और आप मुझे बताना उसमें से कि उन कहानियों में ऐसा क्या था कि वो आपको क्या लाइफ में क्या सिखाया उसने। सर आप दोस्ती मूवी देखिए, कितना जबरदस्त फ्रेंडशिप है उसके अंदर। आप पुरानी फिल्मों के रिलेशनशिप देखिए जी, हमेशा सर फैमिली को बांधने की बात तो इसमें पता नहीं, मैं इस बारे में कुछ ज्यादा कहूंगा नहीं। क्या होता है ना कि हम फिर से वही बात कर रहे हैं, हम बड़े अच्छी बातें करने में बहुत मजा आता है सबको, कि मेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी तो और आप ऑफ कोर्स फैकल्टी हैं, आप अपने आसपास उठा के देख लीजिए कितनी फैमिलीज में कितना प्यार है। लोग छोटे छोटे पैसों के लिए अपनी घर, जमीन, कमरों के लिए लड़ रहे होते हैं। तो मुझे तो कम से कम ये मत बताइए या आपने आपको झूठ मत बोलिए कि सब कुछ अच्छा है हमारी दुनिया में। तो मैं उसका बिल्कुल। और एक और बात है मैम, एक और बात है, पता है एक और बात है, मैं फिर से आपको कहना चाहूंगा कि हमारे जितने भी मीडिया स्टूडेंट्स हैं ना, उनको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है, बहुत बुरा देखने को मिलने वाला है, बहुत बुरी स्टोरीज शायद वो जो इन्वेस्टिगेशन, जो जर्नलिज्म होता है उसमें देखने को मिलेंगी उनको कहानियां। तो आप उनको, अब मुझे लगता है कि आप उनको आवरण ना ही पहनाएं तो बढ़िया है, मेरा अपना मानना है, हो सकता मैं गलत हूँ। तो मैं ये मानता हूं कि जब एक सेल्फ सेंसरशिप लिखी हुई है तो स्टूडेंट्स को समझना चाहिए कि ये
कहानी है, इसमें क्या सही क्या गलत है दिखाना चाहिए। ऐसा किसी भी कहानी में हम कोई विलन कभी लिख नहीं पाएंगे। आपने बोला कि हमारी वेब सीरीज में या किसी भी वेब सीरीज में बहुत सारा वॉयलेंस है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, 6.5 घंटे की करीबन करीबन वेब सीरीज है, मुझे आप सीन्स निकाल के, सीन्स निकालना वॉयलेंस के, मुझे आप उसमें मैक्सिमम 10 मिनट के वॉयलेंस सीन निकाल दीजिए। 10 मिनट वॉयलेंस, प्योर वॉयलेंस सीन्स, 10 मिनट की फुटेज निकाल के दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा आपको। पर प्रॉब्लम क्या है कि हम सिर्फ अच्छा अच्छा दिखा नहीं सकते। कोई भी नहीं है, कोई भी समाज जब सिर्फ अपनी बुराइयां छुपाता है ना, तो वो घाव बन जाता है थोड़े दिन बाद। तो अच्छा है ना कि कुछ प्लेटफॉर्म पे लोगों को पता चल रहा है कि ये भी गलतियां हैं, और हम अपने समाज से ही हैं, वो कहीं बाहर से नहीं आई हैं वो चीजें। तो मैं ये जो ज्ञान वाले मोड में मैं ज्यादातर होता नहीं हूँ। मेरा पर्सनली मानना, बावजूद मैंने वो कहानी नहीं लिखी है, तो ये कुछ है बातें। तो और ऑडियंस की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारे पास है सौरभ अत्रे। सौरभ अत्रे, आप प्लीज अपना बताएं, अपना इनका माइक अनम्यूट कर दो प्लीज। सौरभ अत्रे, आप अपना माइक इनका माइक प्लीज ऑन कर दीजिए, और इनका वीडियो भी ऑन करने के लिए कहें प्लीज। हेलो, हाँ जी सौरभ, हाँ सौरभ, अपना बताएं आपका सवाल किससे है। जी, जयदीप सर और पवन सर को सबसे पहले नमस्कार। मैं माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी का न्यू मीडिया का स्टूडेंट हूँ, और मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है। सर, क्वेश्चन ये है कि जो OTT प्लेटफॉर्म्स की अभी हमने बात करी, वो OTT प्लेटफॉर्म्स जो इंडिया में अभी आ रहे हैं, जैसे कि ZEE5 हो गया या ऑल्ट बालाजी हो गया, तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, दे आर सर्विंग मोस्टली एडल्ट कंटेंट, and what we see on Netflix and Amazon Prime is a totally different. So what's your take on this? मतलब हम जब तक हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को वैसा बेहतरीन कंटेंट नहीं देंगे, तब तक ये इंडस्ट्री कैसे ग्रो होगी? नहीं, ग्रो होगी। अगर मैं, सॉरी पवन सर से पहले बात कर रहा हूं, मैं ग्रो होगी सौरभ भाई, क्योंकि क्या होगा ना कि धीरे धीरे क्या है, एक होता है ना कि एक प्याला जो है ना, उसको उतना ही भरा जाएगा जितनी उसका मात्रा है, ले सकता है वो। क्या होगा, एक दौर के बाद, जैसे जैसे आपका एक टीवी एक दौर चला था, फिर आपने उस टीवी को नकारना शुरू कर दिया, क्योंकि आप उन कहानियों से बोर हो जाते हो। और यहाँ अच्छी बात क्या है कि यहाँ आपको बाहर का कंटेंट देखने को मिलेगा। तो जो ऑडियंस धीरे धीरे उस कंटेंट से, जो सही नहीं है, जो उनको लगता है कि हाँ ये बिना बात की कहानी में, और जो भी आप कह सकते हैं कि वो सही और गलत की पहचान आपको धीरे धीरे होनी शुरू हो जाएगी। तो आप, जैसे आपने कहा कि वो Amazon और Netflix पे, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म है, वहां कुछ भी आप ऐसा डालोगे जो कि जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसकी कोई कहानी नहीं है, जिसमें कोई कंटेंट ही नहीं है, तो ऑडियंस उसको नकार देगी। ऐसे ही जो आप हमारे लोकल OTT प्लेटफॉर्म्स है, वो थोड़े दिन बाद नकार दिए जाएंगे ऑडियंस द्वारा, क्योंकि वो ज्यादा देर तक चलेगा नहीं, मेरा ये मानना है। और वो अपने आप में, ऑडियंस अपने आप शिफ्ट हो जाएगी उस कंटेंट की तरफ जो एक अच्छा कंटेंट है। कितनी देर देख लोगे आप खराब कहानियां? कितनी देर तक देख पाओगे? नहीं देख पाओगे, साल 1-2 मैक्सिमम। यस एग्जैक्टली, मतलब हम कहाँ स्टैंड करेंगे ऐसे टाइम पे? बेटर स्टैंड करेंगे, क्योंकि हम ग्रो कर रहे हैं। हमारे लिए क्या है ना कि हमारे लिए नया मीडियम है। वर्ल्ड वाइड बहुत लोग इस प्लेटफॉर्म पे बहुत पहले से हैं, मतलब उन्होंने ऐसी ऐसी कहानियां दी हैं, इतने बड़े बड़े वेब सीरीज दी हैं, और आपको लगता है कि यार हम तो सोच भी नहीं सकते ये, हम तो अंदाजा ही नहीं लगा सकते कहानी ऐसे भी बताई जा सकती है। तो हमारे लिए एक तो है शुरुआत है, तो हमें भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि वर्ल्ड वाइड किस तरह की कहानियां चलने वाली हैं। और उसके साथ साथ हमारी अपनी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि हमें इस ऑडियंस को भी ग्रो करवाना है। उसके साथ साथ ये ऑडियंस बाहर का काम देखने लगी है। अब लोग डिनाई कर देते हैं ये, कह रहे यार ये क्या, वही घिसी पिटी हीरो स्टोरी, हीरो विलन, वो स्टोरी मत दिखाओ उनको। अगर कंटेंट नहीं होगा, अगर कहानी में बात नहीं होगी, तो ऑडियंस धीरे धीरे नकार देगी उसको। तो हम ग्रो कर रहे हैं, शुरुआत है हमारे लिए, लेकिन हम डेफिनेटली उस कंटेंट की तरफ ग्रो करेंगे जो अच्छी कहानियां लिखी जाएंगी जहाँ। राइट सर।
तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि वेब सीरीज का चलन बहुत पहले से ही है और हम लोग तो अब इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, लेकिन विदेशों में बहुत पहले से बहुत अच्छी अच्छी अनबिलीवेबल स्टोरीज आती गई है, बहुत अच्छी आती गई है। तो सर ऐसे कुछ वेब सीरीज का आप जिक्र करना चाहेंगे, आपकी पर्सनल फेवरेट वेब सीरीज कौन सी है? बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं। क्या होता है ना कि मुझे स्पेशली डॉक्यूमेंट्रीज देखने में या डॉक्यू ड्रामा देखने में या थ्रिलर देखने में ये बहुत मजा आता है। और जैसे स्पाई स्टोरीज हैं, तो मैं कुछ दो चार नाम लूंगा, आप उनमें देखिए। उसमें सब एक तो सही सब कुछ मिलेगा, उसमें सही गलत दोनों पहलू मिलेंगे। और आप पत्रकारिता, फिर से वापस आता हूँ, पत्रकारिता के स्टूडेंट हैं हम सब, पत्रकारिता के लोग हैं। अगर सिर्फ सही दिखाएंगे तो बात बनेगी नहीं, तो थोड़ा थोड़ा गलत भी दिखाना चाहिए, पता चलता है सही और गलत कितना अलग अलग है। तो मेरी कुछ बहुत फेवरेट रही हैं। जैसे एक लिमिटेड सीरीज है, इट्स कॉल्ड स्पाई, जो कि एक रियल एक स्पाई के ऊपर है जो इजराइल के थे। ही वाज वर्किंग इन मोसाद। तो वो कैसे उस इंसान की जर्नी है जो 6 एपिसोड की, बहुत अच्छी कहानी। उसके अलावा एक वेब सीरीज है, इट्स कॉल्ड अनऑर्थोडॉक्स, जो कि बहुत ही कमाल के टेक है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर। वो जाके देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि सही गलत क्या होता है। और एक लूसीफर एक बहुत अच्छी वेब सीरीज जो मुझे लगी, वो बड़ा ही डिफरेंट टेक है। किसी भी एक बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स को उठा के उन्होंने जो आज के समाज में रख के उनसे जैसा बिहेव करवाया है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। दैट्स वेरी नाइस। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ अच्छा और कुछ बुरा दोनों दिखाना चाहिए, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कई वेब सीरीज ऐसी भी है जिनमें कुछ मतलब जरा ज्यादा ये जो वायलेंस है या ये जो मतलब चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, ये सब चीजें कुछ हद तक हमारे समाज में प्रचलित है, मैक्सिमम पता नहीं मैम, मैं पता नहीं, आप नहीं अपना सवाल पूरा कीजिए पहले। नहीं, बस मेरा इतना ही था, क्योंकि आपने जो बोला मेरी उससे क्यूरियोसिटी जगी तो मैंने पूछा। मैं अभी डाटा निकाल के बैठूंगा ना मैम, सच बता रहा हूँ, आप मीडिया के लोग हो, अभी डाटा निकाल के बैठूंगा चाइल्ड पोर्नोग्राफी का पूरा। अगर मैं रिकॉर्ड लिख उठाऊंगा इस देश का, तो शर्मा जाएंगे हम अपने मुंह। अपने आप का चेहरा देखने में शर्म आती है कि हम इस देश में हैं। तो आप अगर फैक्ट्स के ऊपर जाऊंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर से वही कह रहा हूँ, तो आप देखिए ना रामायण, आपके पास ऑप्शन है, क्यों देख रहे हैं फिर आप? यही तो प्रॉब्लम है कि हम कुछ बुरा देखना ही नहीं चाहते। हम अपने बच्चों की कोई छोड़िए आप वेब सीरीज को, मैं ये कहता हूँ हम अपने बच्चों ने कुछ गलत किया है, हम उसको एड्रेस करना नहीं चाहते। अरे ठीक है, बच्चा है, बड़े होके सुधर जाएंगे, अभी उससे बात कीजिए ना। आप क्यों नहीं बात करते हम अपने बच्चों से? इतना सा ही फर्क है। बहुत सारा ऐसा हमारा समाज हो गया है जहां हम अपनी किसी भी बुरी बात को हम अपने में, मैं मोटा हो गया हूं, मैं ये मानने में इतनी छोटी बात नहीं मानता हूं मैं, क्योंकि वो मेरा नेगेटिव पॉइंट है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप से ही झूठ बोलते रहते हैं, पर्सनल लेवल पे। नॉर्मल लाइफ में आपको पता है कि आप शराब सिगरेट पियोगे, आप खाना उल्टा सीधा टाइम पे खाओगे तो मोटे हो जाओगे, पर नहीं एड्रेस करते हम उस प्रॉब्लम को, तो फिर मोटे ही होगे, उसका इलाज नहीं ढूंढ सकते आप। ऐसे अगर आपको पता है कि मेरे घुटने पे घाव है और मैं उसको ढक के बैठा रहूं कि नहीं मुझे सब ठीक है, तो वो घाव जो है नासूर बन जाएगा, एक दिन काटना पड़ेगा घुटना। तो इससे पहले कि वो नासूर बन जाए, उसको एड्रेस करो, उनको समझो, उन चीजों को। मेरा ये मानना है। पवन सर, आप कितना सहमत हैं जयदीप सर की इस बात से? क्या लगता है कि भारतीय समाज वाकई इतना परिपक्व हो गया है कि जयदीप सर की इन बातों को, इस फिलॉसफी को एक्सेप्ट कर सकेगा, इतना मैच्योर है? मुझे लगता है कि भारतीय समाज जो है वो हमेशा से मैच्योर ही रहा है जी। भारत की जो वैसे तो हम विश्व गुरु कहते हैं अपने आप को, और आप कह रहे हैं कि भारतीय समाज मैच्योर नहीं हुआ। हम महाभारत और रामायण की फिलॉसफी समझ सकते हैं कि कितनी कमाल की फिलॉसफी है गीता में, और हम कहते हैं कि हम मैच्योर नहीं है। मुझे इमेच्योरिटी की उसमें, सॉरी पवन सर आप बोलिए। नहीं, तो मुझे लगता है कि हम शुरू से मैच्योर रहे हैं और हमने टाइम पे अपनी मैच्योरिटी जो है पूरे वर्ल्ड को भी दिखाई है। बिल्कुल। और जो जयदीप कह रहा है, तो इसके अंदर दो चीजें मुझे लगता है, एक है सेल्फ सेंसरशिप और एक है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ जी। तो जैसे जैसे आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज तो जयदीप ऐसे ही हो रहा है कि जैसे 100 साल का बॉलीवुड हो गया और 8-10 साल की भी वेब सीरीज है, तो किसी 10 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट किया जाए कि वो 70-80 साल के बुजुर्ग जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए। ये और धीरे धीरे कर ऐसा होगा। मैं धीरे धीरे कर ऐसा उसमें लिखा जाता है ना कि आपके पारिवारिक
जैसे होता है ना, फैमिली डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एडल्ट्स डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो उनको समझाएं कि ये सही नहीं है बच्चे। और मैं इसको एक अलग एंगल से भी देखता हूँ, ये जो कोविड-19 का टाइम है, तो मुझे ध्यान है कि सारे में वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर बहुत ज्यादा जो है लोगों ने देखा है। तो मैं देख रहा था कि शाम को हम परिवार के साथ बैठ के रामायण भी देखते थे, लेकिन दिन में अपना जो 5 इंच का जो स्क्रीन है मोबाइल की, उसके ऊपर कोई ना कोई वेब सीरीज भी देखते थे। तो जो हमारे संस्कार है, जो हमारी संस्कृति है, वो इन छोटी मोटी चीजों से मुझे लगता है कि आहत होने वाले नहीं है। हमारी एक स्ट्रॉन्ग कल्चर है, और जैसा जयदीप ने कहा कि एक मैच्योरिटी लेवल जो है, और धीरे धीरे कर अगर हमारा कंटेंट ऐसा होगा तो लोग उसको नकार देंगे। तो कुछ चीजें समय के गर्भ में छिपी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वेब सीरीज जो है वो टाइम के साथ साथ मैच्योर होती चली जाएगी। और मैं इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा मैम कि वेब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी बकवास कहानियां हैं, मत देखो ना, फिर अच्छी बात है मत देखो वो, क्योंकि यही खूबसूरती है, मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस नकार देगी खराब कहानियों को। ये तो है, वो कहानियों के साथ जुड़ेगी, किरदारों के साथ जुड़ेगी। आप फालतू का पोर्नोग्राफी दिखाते रहोगे, फालतू की कहानियां दिखाते रहोगे, फालतू का जो भी हम मानते हैं कि हमारी संस्कृति के खिलाफ है, तो वो सब ऑडियंस नकार देगी। बच्चे बहुत बड़े हो रहे हैं, अपने बच्चों को बच्चा मत समझिए, उनका लेवल जो है ना, एक्सपोजर लेवल, वो हमसे कहीं ज्यादा है। हमारी वाली पीढ़ी से अभी की जो पीढ़ी है, जो अभी 15-20 साल के बच्चे हैं, वो बहुत ज्यादा एडवांस है हमसे। तो एक तो हम अपने दिमाग से ये निकाल दें कि हमारे बच्चे बेवकूफ है, गधों की तरह पैदा नहीं किए गए हैं, वो गधों की तरह बड़े भी नहीं किए गए हैं। दे आर वेरी स्मार्ट, दे नो इन एंड आउट। हमें लगता है कि हमारे तो बच्चे हैं अभी 15-20 साल के, इनको तो कुछ पता ही नहीं, इन्होंने तो कुछ सुना ही नहीं, देखा ही नहीं, ऐसा। और वो हमसे बहुत एडवांस है, वो आपको बता देंगे कि ये वाहियात कहानी है, इसमें बिना बात का, इसमें बिना बात का गालियां है, इसमें बिना बात का सेक्स है, इसमें बिना बात का पोर्नोग्राफी है, ये बच्चे बता देंगे आपको, मैं लिख के बता रहा हूँ। वो इतने एडवांस है। नो डाउट बच्चे हैं तो है मैच्योर, नो डाउट वो हमारे समय से बहुत आगे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जयदीप जी से मेरा एक सवाल है, जयदीप जी नमस्कार। मैं ये जानना चाह रहा था कि सुनील दत्त से लेके और उससे पहले और उसके बाद हरियाणा के कलाकारों की बॉलीवुड में संख्या तो बढ़ी, लेकिन हरियाणा का कल्चर कहीं भी फिल्मों में दिखाई नहीं देता, क्या बात? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे बहुत सारे टीवी सीरियल्स आए थे बीच में, आपने कहीं देखे होंगे, बहुत सारे बीच में एक हरियाणवी टीवी सीरियल्स का दौर चला था, जहां कुश्ती के ऊपर कुछ कहानियां थी, कुछ वो थी। बट मैं फिर से कहूंगा, अगर हरियाणवी कल्चर की बात हो तो रिसेंट टाइम्स में तो फिर भी बहुत कुछ दिखाई दिया है। जैसे चक दे इंडिया में भी एक स्ट्रॉन्ग हरियाणवी कैरेक्टर्स थे, 2-3 हरियाणा पंजाब के। दंगल जो कि इतनी बड़ी हिट हुई है, वो पूरा हरियाणवी कल्चर है। और क्या है ना सर, कि धीरे धीरे किसी स्टेट का एक होता है, जैसे आपके जैसे हरियाणा में अगर कोई बाहर का कहे कि यार हमारे यहाँ उतना एक्सपोजर नहीं है आर्मी को लेके या स्पोर्ट्स को लेके, क्योंकि वो एक समाज में आपके जो आगे वाली पीढ़ी है, जो आपसे बड़ी पीढ़ी है, वहां से कोई आपको इंस्पिरेशन नहीं मिलती है। क्या होता है, सेम वो हर एक स्टेट में अलग अलग तरह, जैसे अगर हम कहें कि बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में बहुत सारा म्यूजिक है, कल्चर है, पोइट्री है, बिकॉज उनकी एक लेगेसी रही है उस फील्ड में। हमारी हरियाणा पंजाब की लेगेसी रही है कृषि में या फिर सेना में या इन सब जगहों पे, तो हमारा यूथ उस तरफ आकर्षित होता है। नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन हमारे यहाँ बच्चे उनको देख देख के बड़े हो रहे होते हैं कि हमारे यहाँ इतने फौजी ऑफिसर्स हैं, तो वो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है जिसकी वजह से हम उन फील्ड्स में जाएंगे। अब धीरे धीरे क्या होगा कि अगर इस तरफ भी लोग आएंगे, अभी मीडिया में ही अगर बहुत सारे नाम अगर हरियाणा से उभर के आएंगे, तो वो लोग भी मीडिया की तरफ आकर्षित होंगे, वो लोग भी सिनेमा की तरफ आकर्षित होंगे। और शायद जिस तरह से हम पंजाब के कल्चर मान के चलते हैं कि पंजाब वर्ल्ड वाइड एक कल्चर ऐसा है जहाँ कहीं भी गाना चला दो पंजाब का आपको समझ में आ जाएगा। जरूरी नहीं कि आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है और नहीं आ रही है, शायद उस तरह की एक लेगेसी जिस दिन बन जाएगी, उस दिन हमारा हरियाणा का कल्चर भी बाहर आना शुरू हो जाएगा। जयदीप, मेरी एक रिक्वेस्ट है इस सारे में कि कमांडो मूवी जो थी उसके अंदर जो एक मेन विलियन कैरेक्टर उसके अंदर कई तरह के चुटकुले जो थे वो शायद हरियाणवी में ही सुनाए जाए। हाँ, हरियाणवी पंजाबी मिक्स करके देखे। आप पाताल लोक ले लीजिए ना, पूरा का पूरा उसमें आधा हरियाणा दिखाई देता है उसमें हाथीराम के थ्रू। तो कोई एक चुटकुला जो है इस प्लेटफॉर्म पे, अरे
नहीं सर प्लीज याद होगा। नहीं वो एक कल यहाँ बहुत जोर से बारिश और वो हो रही थी। आपने हरियाणा में चुटकुला ऑलरेडी बहुत फेमस है, बहुत सारे लोगों ने सुन रखा होगा। वो एक आदमी अपने पत्नी को एक्सपायर हो गई थी, दाह संस्कार करके घर आया तो बहुत जोर से बिजली कड़कने लगी और बारिश होने लगी। तो ये देखता ऊपर की तरफ लागे है पहुंच गई बोले। तो हमारे यहाँ ह्यूमर बहुत ड्राई होता है। एक सर कमांडो वाला जो 20 है, जो गोली वाला जो आपका डायलॉग है, वो एक बारी सुनाएंगे तो बढ़िया लगेगा। अरे सर वो इतनी पुरानी सर कहाँ फंसा रहे हो आप? बड़ी ये तो ऐसा हो गया कि वो जो होता है ना सरप्राइज टेस्ट हो जाता है बच्चे का बिना पढ़े आया है, तो वो काम हो गया। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है सर। वो प्रॉपर आपके मूड बनाना पड़ता है, आपको लाइनें याद रखनी पड़ती है। अभी बोलूंगा तो ऐसा लगेगा कि अरे क्या कर रहे, इतना गंदा एक्टर है, छोड़ दो। कलाकार अपने डायलॉग के साथ कभी भी इनजस्टिस नहीं करेगा। हाँ, ये इसलिए कम बोल पा रहा हूँ ना अभी। अगला क्वेश्चन हम हमारे चेयरपर्सन, डीन एंड चेयरमैन प्रोफेसर अतुल मिश्रा से लेंगे। प्लीज अनम्यूट द माइक ऑफ अतुल सर। मेरा माइक अनम्यूट ही है। अतुल सर प्लीज आस्क क्वेश्चन। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मेरा क्वेश्चन डॉक्टर पवन मलिक जी से है, और उसके बाद मैं जयदीप जी के भी विचार सुनना चाहूँगा कि वो भी क्या सोचते हैं। पवन जी, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा पहलू चेंज कर रहे हैं हम लोग, अभी तक जिस चीज़ पे कॉन्टेक्स्ट पे बातें कर रहे थे। तो जैसे हमारे मीडिया स्टूडेंट्स हैं, हमारे को अपने नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट लेवल पे अपनी फैकल्टी को लेके जाना है। तो आप क्या सोचते हैं कि अब हम अपने मीडिया स्टूडेंट्स को, अपने एनिमेशन स्टूडेंट्स को और अपने लिटरेचर के स्टूडेंट्स को, इन सबको क्या नई स्किल सिखाएं और किस एरिया में रीस्किल करें कि वो इन नए प्लेटफॉर्म्स पे सक्सेसफुल होना शुरू करें? एक्टिंग के अलावा, एक्टिंग एक बहुत बड़ा उसमें है, और जैसे जयदीप जी ने भी बताया कि भाई वो ज़्यादा उनको डिफरेंस लगता नहीं, एक कलाकार है, उसको कैरेक्टर में जाना है। पर मैं अपने स्टूडेंट्स के पॉइंट से जानना चाहूँगा, मीडिया स्टूडेंट्स के पॉइंट से, कि जो हम अभी उन्हें स्किल्स सिखा रहे हैं, जो एक्सपोजर्स दे रहे हैं, अब हम उन्हें क्या नए एक्सपोजर्स दें और क्या करंट एक्सपोजर्स को रीस्किल करें? तो आप अपने विचार उस पर बताइए हमारे को। डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टूडेंट है मीडिया स्टडीज के अंडर, उसको हमें एक ब्रॉड एक्सपोजर जो है वो देना चाहिए। क्योंकि जब हम मीडिया की पढ़ाई करने के बाद इंडस्ट्री में जाते हैं तो हम कोई फिक्स नहीं होते कि हमें यही करना है, जिसको हम कहते हैं कि जैक फॉर ऑल। तो ऐसा मुझे लगता है कि एक तो हमें अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए हर फील्ड का। इफ यू टॉक अबाउट प्रिंट मीडिया, इफ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इफ यू टॉक अबाउट सोशल मीडिया, न्यू मीडिया, एक तो उसको एक्सपोजर देना चाहिए। दूसरा, जो मैं अधिकतर इंस्टीट्यूट्स में देखता हूँ कि थ्योरेटिकल एक्सपोजर तो हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, लेकिन एक जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, अब वेब सीरीज की अगर हम जैसे बात करते हैं तो वेब सीरीज में सबसे अच्छी खासियत यह है कि न्यू कमर जो कैरेक्टर है उसको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो वेब सीरीज ने दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के साथ साथ एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव और उसका एक्सपोजर जो है वो अपने स्टूडेंट्स को देना चाहिए। और कहीं ना कहीं जब वो 2 साल 3 साल की पढ़ाई हमारे इंस्टीट्यूट में करता है, तब हम उसको प्रैक्टिकल जो है वो ज्यादा से ज्यादा करवाएं। सेलिब्रिटीज के साथ मिलवाना, एक्सपर्ट्स के साथ मिलवाना, उसकी डिस्कशन करवाना, उसको कुछ छोटे छोटे असाइनमेंट्स देना, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके थ्रू उनका रिव्यू करना, उसको उसकी कमियां भी बताना। और सबसे बड़ी बात जो जयदीप ने कई बार एक ही क्वेश्चन को झेलते हुए कही है, हमें अपने स्टूडेंट्स को दोनों तरह के एंगल बताने चाहिए। हमें उसको ये भी बताना चाहिए कि ये सही है और हमें उसको ये भी बताना चाहिए कि ये गलत है। नाउ चॉइस इज योर। तो जैसे हम कहते हैं कि अगर लड़ाई में जब हम लड़ने जाते हैं तो दुश्मन हम पर कैसे हमला करेगा ये कोई प्री डिसाइडेड नहीं होता। तो एक मुझे लगता है कि एक प्रोफेशनल के नाते हर प्रकार से हमें अपने स्टूडेंट को तैयार करना चाहिए। और आने वाले 2, 4, 5 साल में मुझे लगता है कि एक इंडस्ट्री का नया पर्सपेक्टिव जो है वेब सीरीज ने स्टार्ट भी किया है। पहले जॉब अपॉर्चुनिटीज कम थी, लेकिन वेब सीरीज के कारण, एक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के कारण जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हमारे पास बढ़ी हैं। हमारे स्टूडेंट्स के सामने एक बड़ा कैनवास जो है वो अब अपने को दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों के हिसाब से स्टूडेंट्स को हमें तैयार करना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर साहब।
मैं जयदीप जी के भी विचार सुनना चाहूंगा, वो क्या है? सर काफी कुछ तो पवन सर ने बोल ही दिया है, बट मैं फिर से मैं बड़ा साफ शब्दों में कहने की कोशिश करूंगा कि क्या होता है ना कि इंस्टीट्यूट में हम बच्चों को डेफिनेटली आप उनको ये जरूर सिखाइए कि बाहर की दुनिया इतनी, जितना इंस्टीट्यूट सेफ होता है ना, इट्स लाइक माँ के गर्भ जैसा होता है इंस्टीट्यूट में बच्चा। मैं भी कॉलेज में पढ़ा हूँ, मैं भी फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ा हूँ। वहां सब कुछ बड़ा सेफ सेफ लगता है आपको कि हाँ चलो आपस में ही तो फिल्म बना रहे हैं हम। क्या होता है ना, जब वही बच्चे एकदम कट थ्रोट कंपटीशन वर्ल्ड में उतरते हैं ना, तो उनको सडनली समझ में आता है कि ओ दिस इज नॉट so easy to understand all this and to compete with the people who are so dedicated and hungry for this job or this work. So मुझे लगता है कि बच्चों को थोड़ा सा ना पूरा हार्श रियलिटीज की तरफ भी देखना चाहिए कि हाँ ये कंपटीशन है, इट्स गोइंग टू बी अ जॉब, तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी और उसके साथ साथ आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होने वाली है उसमें, आपकी अपनी आर्ट, आपकी अपनी कला भी होने वाली है उसमें। तो उनका एक्सपोजर बढ़ाइए, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, जैसे सर ने जैसे बोला अभी, उनको बहुत जरूरी है ये बाहर की दुनिया में क्या किस तरह से चल रहा है, वर्ल्ड वाइड का जो सिनेमा है, वर्ल्ड वाइड जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं, उनको दिखाइए कि लोग किस तरह से कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी पे जाके काम कर रहे हैं और किस तरह से वो लोग इतना खूबसूरत एक कंटेंट तैयार करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। और जस्ट फॉर एन एग्जांपल, एक कुछ डॉक्यूज हैं जो आपको दिखाई, एक टाइगर किंग, लायन किंग करके या टाइगर किंग करके एक डॉक्यूमेंट्री है। इट्स अ ड्रामा डॉक्यूमेंट्री टाइप, काफी लंबी है, 9-10 एपिसोड की। आप देखिए कि उन लोगों ने उस लाइफ को कितना इंटरेस्टिंगली दिखाया है कि, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कहानी कितनी इंटरेस्टिंग है, मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने वो डिजाइन की है वो कहानी, कि मैं इस कहानी को कैसे बताऊंगा, किसी एक इंसान की डॉक्यूमेंट्री है, वो बायोपिक टाइप है, तो वो उसको कैसे दिखा रहा है। तो स्टूडेंट्स को नए इक्विपमेंट्स के साथ, नई जो बाहर काम हो रहा है उसके साथ, उनको रियलिज्म के साथ वो करवाइए। और जैसे सर ने कहा कि जो भी उस फील्ड की एमिनेंट जो लोग हैं जिन्होंने काम कर रहे हैं, उनके साथ 1-to-1 होने दीजिए, उनसे सवाल, बेधड़क सवाल पूछने दीजिए कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं, सही गलत जो उनको लग रहा है, क्योंकि सवाल पूछना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली मीडिया स्कूल में। थैंक यू सर। ऑडियंसेस में से ही हमारे अपने डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं हर्षवर्धन, हम उसको लेना चाहेंगे। हर्ष, आप बताएं आपका क्या क्वेश्चन है और किससे है? नमस्कार जयदीप सर। हाय हर्ष। हाँ सर, मेरा नाम हर्षवर्धन चतुर्वेदी है और मैं मीडिया का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर का, और एक्टर भी हूँ सर। मैं रेपेटरी कंपनी में काम कर रहा हूँ सर, NSD रेपेटरी में श्री राम सेंटर से काम कराएं। और सर मैं एक सवाल पूछना चाहता था, बड़ा नॉर्मल सा। आपने पाताल लोक में इतना अच्छा कैरेक्टर करा, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। पहले तो थैंक यू हर्ष, थैंक यू सो मच। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो कैरेक्टर करा, इसके अंदर एक भी सीन हमें ऐसा नहीं लगा जो निकल गया हो, मतलब आपके हाथ से कहीं सीन स्लिप हुआ हो, छूट गया, और हाँ छूट गया हो। और सर हमें, जैसे हमारे टीचर्स, बड़े बड़े गुरुओं ने हमें बताया है कि एक्टिंग में जिंदगी को जोड़ा जाता है, कहीं ना कहीं जिंदगी को रिलेट कर पाते हैं, एक्टिंग जुड़ती है, हमें मेथड एक्टिंग भी बताई जाती है और हम सारी चीजें पढ़ते हैं। तो हाथीराम चौधरी का जो किरदार था, जैसे आपका परिवेश हरियाणा से है, और हाथीराम चौधरी का जब आप कैरेक्टर बैकड्रॉप तैयार कर रहे थे सर, पहले प्री प्रोडक्शन, इससे पहले, तो आपने अपनी फैमिली से क्या उठाया या कैरेक्टर में क्या डालने की कोशिश करी? कैरेक्टर की आप प्रिपरेशन कुछ बताना चाहें तो सर अच्छा रहेगा। थैंक यू भाई। एक तो आपने इतने करीब से देखा उसको, दूसरा ये कि एक्टर बड़ा ही वल्नरेबल सा एक इंसान होता है। उसको अगर गलत कहानी मिलेगी तो खराब काम हो जाएगा, उसको डायरेक्टर खराब मिला तो भी खराब हो जाएगा, उसको कैमरा ठीक से नहीं मिला तो भी खराब हो जाएगा। और जब सब कुछ अच्छा होता है तब बहुत सारा जो क्रेडिट है वो एक्टर को भी मिलता है। तो आई डेफिनेटली टेक दिस क्रेडिट फ्रॉम द एंटायर टीम, फ्रॉम सुदीप सर माय राइटर एंड अविनाश डायरेक्टर एंड एवरीबडी एल्स, जिसने भी वो सब किया है मेरे लिए। कॉस्ट्यूम वाले ने कॉस्ट्यूम तैयार किए, तो उन्होंने प्रॉपर रिसर्च के साथ सबने अपना अपना काम किया। मेरा काम क्या है कि मैं उसमें थोड़ी सी भावनाएं डाल सकूं, थोड़ी सी आत्मा डाल सकूं, जैसे हम कहते हैं कि बड़ा आप उसको फील लेवल पे लेके आने वाली बात है। और उसके लिए बहुत छोटी छोटी चीजें जो हैं आप उस किरदार के साथ, मेरा थोड़ा सा पर्सनल ये है कि मैं ये मानता हूं कि किसी भी किरदार को आप
कोई आपका दोस्त है, फॉर एग्जांपल हर्ष आपका कोई दोस्त है जो जिसको आप 10 साल से जानते हैं, तो आप उसको कितना समझते हैं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने उसके साथ कितना वक्त बिताया है और कितनी बातें की है। तो मेरा ये मानना है कि मैं किरदार के साथ थोड़ा सा वैसा मेरा बिहेवियर होता है। मैं उसको बहुत बार पढ़ता हूँ, इतनी बार पढ़ता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, जानता हूँ इस इंसान को मैं। और वो मुझे लगता है कि मेरा तरीका है, सबके लिए शायद वर्क करे ना करे मैं कह नहीं सकता, पर मैं उसको बहुत बार पढ़ता हूँ और वो इतनी बार बहुत ही खूबसूरती और बहुत ही डिटेल्ड लिखा हुआ कैरेक्टर है वो, जो कि सौभाग्य था मेरा कि मुझे मिला। और बाकी जो चीजें हैं वो हम जैसे कहा हम हरियाणा से हूं मैं, और मुझे वो थोड़ा सा वो परिवेश समझ में आता है कि किस तरह की भाषा है, किस तरह की, उसके ऊपर ज्यादा कम से कम भाषा के ऊपर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। बस छोटी छोटी चीजें जो आप अपनी लाइफ में देखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कई जगह बताया है कि देयर इज अ काइंड ऑफ सर्टेन वॉक जो हाथीराम की है, वो मैंने अपने पिता से उठाई है। वो आज भी चलते हैं ऐसा, कभी कभी जब बहुत धीरे चल रहे होते हैं, जब उनको कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं होती है, तो ही वॉक्स वेरी इंटरेस्टिंगली, जहां उनका एक लेफ्ट जो है हाथ है वो बहुत ज्यादा हिलता नहीं है, सिर्फ राइट ज्यादा हिलता है। तो यही छोटी छोटी चीजें आप उनके बिहेवियर से, कुछ चीजें, कुछ मेरी पर्सनल लाइफ से, जो मैं बच्चा था या मैं टीनेजर था वहां से कुछ चीजें उठाई गई, और फिर कुछ लोग आपने लाइफ में देखे, कुछ पुलिस वाले आपने लाइफ देखे, उनका कोई एक आध बिहेवियर, तो बहुत सारी चीजें इकट्ठी होके वो धीरे धीरे वो धागे जुड़ने लगते हैं। जी। तो वो प्रोसेस है करीबन करीबन, मतलब इसमें अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो कुछ 2.5-3 महीने पहले, 2-2.5 महीने पहले मेरे पास स्क्रिप्ट थी, तो स्क्रिप्ट में बहुत कुछ लिखा हुआ था, और उसके बाद आपका क्या है कि आपका मन आपको उसमें बिलीव करना है एज एन एक्टर। इफ आई डोंट बिलीव इन द कैरेक्टर, मैं उसको ऑनेस्टी नहीं दे पाऊंगा। तो मेरे साथ ये होता है कि मैं बिलीव करना शुरू कर देता हूँ कि हाँ, ये आदमी ऐसा है और मैं ये ऐसा ही बिहेव करता है। I add something more facts in this question about Harsh. हर्ष, मैं जयदीप अहलावत को लगभग पिछले 16 सालों से जानता हूँ। तो एक्टिंग का जितना थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है और जयदीप को जितनी पास से मैंने देखा है, एक होता है किरदार को निभाना और एक होता है किरदार को जीना। तो मुझे लगता है कि जब भी जयदीप किसी भी रोल में रहते हैं तो किरदार को जीने का जो एक प्रयास है वो करते हैं। जैसे जयदीप ने कहा कि जब आप किसी किरदार के साथ फैमिलियर हो जाते हो तो वो किरदार स्वतः आपके अंदर जो है वो जीना शुरू कर देता है। तो चाहे वो कमांडो मूवी हो, चाहे वो विश्व रूपम मूवी हो, चाहे वो राजी मूवी में आलिया भट्ट के एज ए ट्रेनर के नाते हो, और या फिर पाताल लोक में हाथीराम चौधरी जैसा जो किरदार है। तो मुझे लगता है कि किरदार जीने की जो एक कला है वो शुरू से जयदीप के अंदर रही है। इसलिए जब जयदीप को हम जिस भी रोल में देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, दिस इज द जस्टिफिकेशन विद द रोल। दिस इज माय एडिशन। सर हाँ बोलो हर्ष, बोलो। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इंसाइट दिया एक्टिंग के ऊपर। मैं ये और पूछना चाहूंगा सर, ये लॉकडाउन जो चल रहा है इसमें हम बहुत ज्यादा बोर हो चुके हैं और एक्टर्स हम प्रिपरेशन के लिए प्ले के लिए नहीं जा पा रहे, सिर्फ घर पे ही किताबों का अध्ययन कर रहे हैं। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है, कोई आदमी बोलता है कि मैं बोर हो रहा हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ, कि आप छुपा नहीं रहे उस बात को। है, हम सब बोर हो रहे हैं, पर अगर ये बोले नहीं सब अच्छा चल रहा है जी, सब अच्छा चल रहा है, बात नहीं बनेगी। नहीं, मैं तो बहुत दुखी हूं सर, तो बोलना शुरू करेंगे बोर हो गए भाई। कोई बात नहीं, एक्टर हो, बोर होना बहुत बहुत लाजमी है। मुझे लगता है कि कोई भी जितने भी लोग आर्ट फील्ड से ना, वो लाइफ में बोर होते हैं, क्योंकि उनको कोई भी एक चीज लगातार जो है वो एंगेज नहीं, मोनोटोनस हो जाती है सर, वो मोनोटनी हो जाती है उनके साथ, उनको कुछ नया करना होता है। तो फाइंड न्यू थिंग्स, फाइंड न्यू बुक्स, फाइंड न्यू डॉक्यूमेंट्रीज, देखो कुछ अगर कुछ इंटरनेट पे नया मिल रहा है तो ठीक है, और कुछ नई किताबें उठा लो, कुछ नया पढ़ना, पोइट्री पढ़ना शुरू कर दो और उसको शूट करना शुरू कर दो। बी एन एक्टर ना, परफॉर्म, कैमरा सामने रखो और पोइट्री पढ़ना शुरू करो। थैंक यू सो मच सर। सर मैं बस यही पूछना चाहता था कि जैसे वर्ल्ड सिनेमा देखने के लिए हमें इंगेज करा जाता है कहते हैं, और मैंने देखा भी, हिचकॉक की कई फिल्में देखी, एल पचिनो की बहुत पुरानी फिल्में देखी। मैं सर ये चाहता हूं कि आप अपना पसंदीदा कोई शायर, राइटर जो आप पढ़ते हो, पसंदीदा किताब मेरे साथ शेयर करना चाहें। यार मैं बहुत सारी चीजें अभी इस टाइम पे तो कुछ खास नहीं पढ़ रहा हूँ, पर मुझे जैसे अभी रिसेंटली मैं राहत इंदौरी साहब को पढ़ रहा था, उनका एक किताब है चांद पागल है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग नज़्में हैं उसमें। गुलजार साहब की कुछ न कुछ पोइट्री पढ़ी होती तो वो पढ़ता रहता हूँ। पुराने नाटक पढ़े हैं मेरे पास बहुत सारे, है वदन से लेके कोर्ट मार्शल से लेके ययाति से लेके बहुत सारे पढ़े हैं।
तो कभी बोर होता था, अच्छा वो नाटक उठा लेते हैं आज कुछ नए ढंग से। हो सकता है ना कि आपने 4 साल पहले पढ़ा हो, जी आज जब पढ़ोगे ना कुछ नया आएगा उसमें से, और वो आपके दिमाग में रह जाता है। एज एन एक्टर वो आपके दिमाग में रह जाता है, तो शायद कहीं काम आ जाएगा। 2 लाइनें भी मिल गई तो काम आ जाएंगी। सेम विद फिल्म्स, आप उन फिल्मों को उठा के देखोगे। फॉर एग्जांपल आप एल पचिनो, मैं एल पचिनो मेरे फेवरेट एक्टर्स में से एक हैं। मेरे भी सर। लाइक वन ऑफ द मोस्ट फेमस। मैंने उनकी फिल्में, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, गॉडफादर कुछ जब से मैंने पहली बार देखी है, करीबन 10 साल हो गए उस बात को, 8-9 साल हो गए। मैं उसको 100 से ज्यादा बार देख चुका हूँ, अब तो गिनती ही नहीं है। पर मैं क्या करता हूँ ना कि मुझे उनकी खाली सीन उठा के देखना शुरू कर देता हूँ, और आप विश्वास मानिए, आपको हो सकता है 50वीं बार जब देखोगे तो आपको लगेगा ओह ये वाला जेस्चर आपने मिस किया। जी, ये स्क्रिप्ट के साथ होता है, ये पोइट्री के साथ होता है, ये सिनेमा के साथ होता है, ये लाइफ के साथ होता है। हो सकता है आप 50वीं बार किसी आदमी से मिलो, आपको लगे कि ओ ये बात तो नहीं पता थी मुझे इसके बारे में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू हर्ष, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। तो अब लेट्स मूव टू पवन सर। कैरेक्टर्स की बातें हुई है, तो पवन सर आप काफ़ी सालों से आप जयदीप सर को जानते हैं, इनकी फिल्म्स भी देखे, एक्टिंग की भी आपको समझ आई। तो सर आपके मुताबिक आपको जयदीप सर का कैरेक्टर सबसे अच्छा कौन सा लगा? जो अभी तक किया नहीं है। It's a very tough question for me. मुझे लगता है कि जो एक्टर होता है उसका हर जो मूवी है उसके लिए हर जो अपॉर्चुनिटी है उसको नए अवसर देकर जाती है। हाँ जी, हाँ जी। मेरे को ये भी ध्यान है कि जयदीप अहलावत जो है वो थिएटर से भी जुड़े रहे हैं, तो हम जब अपनी चीजों को शुरू करते हैं तो धीरे धीरे करके, जैसा भी जयदीप ने कहा कि हर जब भी आप कुछ करते हैं तो आपको लगता है इसमें कुछ रह गया है, उसको फिर आप नेक्स्ट सीरीज के अंदर आप उस कमी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो हर कैरेक्टर जो है, क्योंकि मैंने जैसे पहला कहा कि जयदीप जो है वो कैरेक्टर में जीना जो है वो कैसे कैरेक्टर को जिया जाता है, इस कला को जयदीप अहलावत जो है बहुत बखूबी जानता है। इसलिए जितने भी मैंने जैसे कमांडो मूवी में से लेकर विश्व रूपम से लेकर राजी तक, लेकिन ये जो पाताल लोक का कैरेक्टर है मैं जयदीप वेट जो है इंक्रीज किया है, तो ये एकदम सडनली मेरे लिए एकदम से नया था, क्योंकि जयदीप को मैंने कभी पहले ऐसे देखा नहीं था। तो ऑल कैरेक्टर इज गुड। राइट राइट। तो बाबू सर आपकी फेवरेट वेब सीरीज कौन सी है? जयदीप के सामने आप ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो नहीं बिंदास बताओ। नहीं, मैं आप जोड़ दो पाताल लोक के अलावा, पाताल लोक के अलावा, अब सही रहे। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसा भी कई तरह के क्वेश्चंस आ रहे थे जी, बहुत वेब सीरीज ऐसी है जो फैमिली वेब सीरीज भी है, बहुत वेब सीरीज ऐसी हैं जो सोशल इश्यूज को लेकर यहाँ देख के बोलना चाहिए, यहाँ देख के बोलना चाहिए। तो रिसेंटली मैंने 1-2 वेब सीरीज देखी है। गुल्लक एक बहुत जबरदस्त वेब सीरीज है, TVF क्रिएशन गुल्लक है। तो उसके अंदर आप देखेंगे कि माँ के गुस्से में भी कैसे प्यार छिपा होता है, मिश्रा परिवार के इर्द गिर्द पूरी वेब सीरीज वो घूमती है, 2 भाइयों का आपस में झगड़ा, यानी कि हम कहें कि एक मिडिल फैमिली का जो एक लाइफ स्टाइल रहता है वो पूरा जो है गुल्लक वेब सीरीज के अंदर दिखाया गया है। और कैसे छोटे छोटे सपने मिडिल फैमिलीज के रहते हैं कि ये घर पुराना हो गया है, इसको नया बनाना है, बेटे की शादी करनी है, बेटे की नौकरी कब लगेगी, गली में 2 महिलाएं आपस में एक दूसरे की चुगली करती है। तो मुझे लगता है कि बहुत सी ऐसी वेब सीरीज भी हैं। तो लेटेस्ट जो 2 मैंने वेब सीरीज देखी है उसके अंदर पाताल लोक के अलावा जो है वो गुल्लक है, और एक पंचायत वेब सीरीज, अगर आपने किसी ने अगर देखी हो पंचायत वेब सीरीज, जिसके अंदर नीना गुप्ता से लेकर जितेंद्र कुमार कई रोल हैं, और कैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं, जब आप पंचायत वेब सीरीज को देखेंगे तो कैसे एक इंजीनियर जो ग्रेजुएट है उसको पंचायत सचिव की नौकरी मिलती है बिहार उत्तर प्रदेश के बलिया गांव में, वो जाता है वहां, फिर उसको लगता है कि ये जॉब मेरे लिए ठीक नहीं है, फिर वो MBA करने की कोशिश करता है। तो मुझे लगता है कि 2 वेब सीरीज, वन इज द गुल्लक एंड अनदर वन इज द पंचायत, ये एक फैमिली वेब सीरीज के नाते भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो आपकी पवन सर किस तरह की कहानियों में रुचि है? जैसे जयदीप को अपना बता रहे थे कि उनको थ्रिलर बहुत पसंद है, आपको किस तरह की कहानियों में रुचि है? मुझे आर्ट मूवीज जो हैं और फैमिली मूवीज जो हैं वो ज्यादा पसंद है। राइट। तो जब हम एज ए मीडिया टीचर होने के नाते हमें सिखाया गया है कि सब प्रकार की चीजें देखिए, क्योंकि आपको स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को फेस करना है।
एक चीज और मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा कि मुझे लगता है जयदीप भी शायद मेरे से सहमत होंगे कि वेब सीरीज ने जो एक टर्म हम सुनते हैं नेपोटिज्म, यानी कि जो भाई भतीजावाद है सिनेमा के अंदर, जो बहुत ज्यादा हमको देखने को मिलता है, वेब सीरीज ने मुझे लगता है कि इस नेपोटिज्म को ब्रेक कर दिया है। अब कोई कलाकार जो न्यू कमर है वो भी अगर अपनी प्रतिभा दिखाना चाहता है तो वेब सीरीज इज अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर न्यू कमर। राइट, मैं बिल्कुल सही बात कही। जो अब आपने बात की, मैं इसी से ही अगली कड़ी जोड़ूंगी। जयदीप सर से मेरा रहेगा सवाल। जयदीप सर, जैसे अभी सर कह रहे हैं कि OTT प्लेटफॉर्म्स है, वेब सीरीज है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे रही है यंग स्टूडेंट्स को। तो सर मेरा यही जानने का मकसद था और हमारे इस वेबिनार का पर्पस भी यही जानने का था कि सर जिस तरीके से बॉलीवुड की डगर बहुत लंबी है, क्या उसी तरह की डगर वेब सीरीज में भी है? क्या उसी तरीके से कठिनाइयां हमें वेब सीरीज में भी फेस करनी पड़ती है? नहीं, क्या है ना मैम कि सब 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 कोई भी फील्ड उठा लो आप, सब में परेशानियां होती हैं, सब में अपने आपको वर्थ साबित करना होता है। क्या होता है, कुछ लोग दिखाई देते हैं, कुछ लोग दिखाई नहीं देते हैं। सिंपल सी बात है कि हमारा, मुझे लगता है कि भारतीय सिनेमा या भारतीय जो बॉलीवुड, अगर मैं एक लेमन टर्म्स में बात करूं, कि वहाँ ये ज्यादा दिखाई देता है क्योंकि सब कुछ ऑन द फेस है, आप कुछ छुपा नहीं सकते हो। लेकिन ये हर फील्ड में है, हर फील्ड में है, जहाँ छुपाया जा सकता है बड़ी आसानी से छुपाया जा सकता है। पॉइंट बीइंग, एट द एंड ऑफ द डे आपको अपना वर्थ साबित करना पड़ेगा। ये तो है, नो डाउट, नो डाउट। देयर इज नो अदर वे अराउंड। हो सकता है शुरुआती दौर थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन आप उससे कितना ही लड़ लोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप ही मीडिया स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास में कोई एक बच्चा है जिसके फादर जो है रिनाउंड किसी पेपर के एडिटर इन चीफ है, तो ये बात बाकी बच्चों को मान लेनी पड़ेगी क्योंकि वो उसकी गलती नहीं है कि अगर ऐसे घर में पैदा हुआ है तो ठीक है, उसको ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, उसके घर में ज्यादा बातें हो रही होंगी उस पूरे फील्ड को लेके, उसकी अंडरस्टैंडिंग वैसे ही बेटर होने वाली है आपकी क्योंकि उसके घर में तो सारा दिन यही बात होगी। अब आप बाकी स्टूडेंट अगर इस बात पे लड़ते रहे कि नहीं इसके तो घर में भी मीडिया के बारे में बात होती है, तो हमारे घर में मीडिया के बारे में बात क्यों नहीं होती, क्योंकि आपका घर तो, मैं स्कूल में जब पढ़ता था मैं तो आधे टाइम जितना स्कूल में जाते थे उसके बाद खेती करने जाते थे। अब मैं अगर कहीं लड़ने लगूं कि बाकी के बच्चों के तो ऑलरेडी उसके तो फादर जो है वो, जबकि मेरे फादर टीचर भी हैं, अगर बाकी बच्चे लड़ने लगे कि ये इसके फादर, अब इस फैक्ट को कैसे बदला जाएगा? नहीं बदल सकते ना। तो इससे आगे की लड़ाई, जो चीज फैक्ट है उसको आप मानो, उसके आगे की लड़ाई शुरू है। और कोई भी आदमी लंबे टाइम तक अपने टैलेंट के बिना, स्पेशली परफॉर्मिंग आर्ट्स में, मीडिया में, इन सब चीजों में नहीं रुक पाएगा। पॉसिबल नहीं। आपको अपना वर्थ साबित करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म हो, चाहे फिर वो आपका मीडिया हो या फिर सिनेमा। और तो साबित करेंगे बच्चे, लेकिन उसके लिए कोई रास्ता आप सजेस्ट करेंगे कि बच्चे, स्टूडेंट जो है, किस तरीके से वेब सीरीज के लिए अपने अप्रोच करें या कैसे उस चीज को अप्रोच करें, मतलब रास्ता कैसे चुने? अलग अलग स्ट्रीम्स हैं। कुछ एक्टर बनना चाहेंगे तो वो एक्टर की तरह उसको अप्रोच करेंगे, जिनको राइटर बनना है वो राइटर की तरह अप्रोच करेंगे। बट फिर से वही बात है, आप अपने आप को जरूर एवेल्युएशन करना बहुत जरूरी है कि आप वाकई वो करना चाहते हैं। क्या होता है ना कि हम प्रेशर में भी तो बच्चे करते हैं कि अरे अब तो अब मास कॉम कर ही लिया है, अब तो कुछ और कर ही नहीं सकते। लेकिन मुझे देख लीजिए, मुझे फौजी बनना था, मैं एक्टर बन गया हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ में आपको कहीं भी लग सकता है कि यार इस फील्ड शायद मेरे लिए नहीं है, आप कुछ और बेटर ट्राई कर सकते हैं। तो जिनको वो वही ट्राई कर रहे हैं जिनको जेन्युइनली लगता है कि यार उनको राइटर बनना है, उनको कैमरामैन बनना है, उनको साउंड डिजाइनर बनना है, उनको एक्टर बनना है, या उनको डायरेक्शन में जाना है, उनको मीडिया में जाना है, उनको पत्रकार बनना है, जो भी। तो आप, वो बच्चे जो भी स्टूडेंट हैं, वो इस बात को अपने आप से पहले कन्विंस हो और उसके बाद आगे उस चीज के लिए तैयारी करना शुरू करें। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, उसके बाद धीरे धीरे खुलते। मैं फिर से वही कह रहा हूँ, बच्चों के पास बहुत सारे एक्सपोजर है, वो जानते हैं उनको क्या करना है। बस ये है कि वो अपनी, मेरा मानना ये है कि वो अपनी ऑनेस्टी के साथ काम करें, उसमें दबाव में नहीं, क्योंकि दबाव में किया हुआ काम यहाँ तो काम नहीं आएगा। राइट। तो बाबू सर, आपको कैसा लगता है, कैसे बच्चों को इस पे अप्रोच करना चाहिए? हाउ दे शुड मूव ऑन, कि कहाँ इसके बाद ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्या करें इसके आगे, कैसे होना चाहिए, क्या गाइडलाइन होनी चाहिए बच्चों के लिए? जयदीप ने बहुत सी बातें बताई दी है, मैं नटशल कुछ 2-3 बातें से बताऊंगा। मुझे लगता है कि जब आप बड़ी तैयारी करने, आपको कोई बड़ी तैयारी करनी होती है, तो आपको 2-3 जो चीजें उस पर ध्यान रखना चाहिए। एक पेशेंस और वन इज पैशन। ये 2
2P का जो फॉर्मूला है, क्योंकि कब आपको कब अपॉर्चुनिटी मिलेगी ये आपको नहीं पता, लेकिन आज का जो न्यू कमर है उनको ये समझाना पड़ेगा कि मास कॉम करते ही आप बहुत बड़े एंकर बन जाओगे, आप बहुत बड़े राइटर बन जाओगे, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि आपको 5 साल तक पेशेंस रखनी पड़े और 5 साल के बाद जाकर आपके लिए कोई प्लेटफॉर्म जो है वो ओपन हो। तो वन इज द पेशेंस एंड पैशन, एंड सेकंड वन इज गोल्डन रूल इज दैट इज अ थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। आप बड़े कैनवास के ऊपर सोचिए, लेकिन आप छोटी छोटी चीजों को लेकर प्रयास करते रहिए। जैसे अभी जयदीप ने हर्ष को बोला कि कोई स्टोरी पढ़ो, कोई कहानी पढ़ो, कैमरे के साथ जाके सामने उसको शूट करो। तो और सेकेंडली मुझे लगता है कि अपने ऊपर जो विश्वास है, अपने ऊपर जो विश्वास है, ये अपना जो फेथ है, वो भी हमें सक्सेसफुल बनाता है। तो ये जो 3-4 गोल्डन रूल है, पैशन विद पेशेंस, वन इज द थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली एंड अपने ऊपर विश्वास, ये 3-4 चीजें जो है वो कहीं ना कहीं हमें आगे लेकर जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। राइट। ये बहुत सही आपने गाइड किया। मुझे उम्मीद है कि हमारी जो यंग जनरेशन है, हमारे स्टूडेंट्स है, इसके लिए इस जो गाइडलाइन जयदीप सर ने दी और जो दिशा निर्देश पवन सर ने दिए उस पर जरूर अमल करेंगे। तो अब जो है हम ये फ्लोर जो है ऑडियंस के लिए ओपन करने लगे हैं। सबसे पहले मैं हमारे डिपार्टमेंट की फाउंडर मेंबर डॉक्टर दिव्या ज्योति मैम को इनवाइट करूंगी। दिव्या मैम प्लीज आइए। सर नमस्ते, जयदीप जी, नमस्कार मैम। पवन जी आपको भी नमस्कार। नमस्कार। मेरा क्वेश्चन सर ये है, एक्चुअली ये जो आपके ट्रेलर्स ही होते हैं ना, इनको देख के आई गेट फीवरिश इवन लिसनिंग टू यू। आई फाउंड माय टेम्परेचर राइज एंड आपने हमें काफी टोका, तरुणा मैम को, सोनिया मैम को, बीच में रचना कसाना मैम आए थे, और मुझे ये रियलाइज हुआ कि नो मेल मेंबर raised a question about violence, and you were talking about exposure, that we need to expose our students to this reality. I guess we have an overdose of reality around us, and why women are asking these questions is because we feel that when there's too much of violence and too much of reality in the movies, then what happens is that the films become it again becomes gendered. What we feel, we feel like a gendered audience now. We feel that even the slightest suggestions that you were saying कि 10 minutes का I can show you a video जिसमें मैं सारा कंपाइल कर दूंगा और आपको 10 मिनट का भी प्योर वायलेंस नहीं मिलेगा. But I guess suggestive violence is as efficacious. उसका impact बहुत strong है. आपकी एक्टिंग का इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग है, और इसीलिए why I asked this question. There's a this axiom, desperate diseases called for desperate measures, and you show so much desperation, you show so much disease in the society, but where is the solution? I'm asking for solution. If these Netflix, my son throughout the day, my husband throughout the day, they can watch it over. I cannot, personally, and they also watch this. They're sports persons. We belong to Haryana. They're both thorough sports persons. I belong to a village, Phalot, अगर आपने सुना हो रोहतक के पास. But वही बता रही हूँ आपको कि उनके लिए वो digest करना easier है. हमारे लिए कुछ लोग. I'm not talking about Mahabharata, Ramayana. I'm not talking about, again, you are excluding the good story. It's very difficult to make a good story. It's very difficult to hook on somebody's interest to a story which is full of hope, because again, it's so rare. Violence has the thrilling impact. How to evoke this kind of thing. I've been trying to make a movie on Sir Chotu Ram, or सोचती हूँ कि how to approach the subject, how to create interest in people. This should be, I wanted to ask you about the budget, the comparative budget of the episodes that you make on this OTT platform and vis-a-vis your silver screen. It's very difficult for a person, I'm a teacher, I also write, but the point is, I've written a book on Sir Chotu Ram. The point is that for last so many years, almost 10 years, I've been, again, we are stuck. This is a state university.
what kind of softwares, what kind of platforms can we provide to our students? There's, we don't have the kind of resources that these foreign universities have. Maybe there's passion, maybe there's patience. Where are the softwares? There's the technical support. Where's the budget? And yes, so many things. Where's the time? Because you have to do so many things which are needed, and which, for example, now in COVID, you can be more creative. Harshvardhan said that he is getting bored. He can be creative, but again, time for probably the teachers in media, the teachers in literature, the people who will be guiding these people in the field, on the field, has to be again, मैडम आई सॉरी टू इंटरप्ट यू. उनको आपने बैरेज ऑफ क्वेश्चन फायर कर दिए, उनको एक बार जवाब देने दीजिए. बहुत सारे लोग वाला था कि मुझे एक सवाल बताना पड़ेगा. हाँ, तो मैडम 2 मिनट होल्ड कीजिए मैडम. मैडम प्लीज. मैडम बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे. आपका जयदीप सर से क्वेश्चन था. सॉरी, ओके देन मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लेती हूँ सर. जी. तो सर आप बजट का ही बता दीजिए. सर छोटूराम के ऊपर बजट क्या बारे बात कर रहे हैं आप? जनरल आप बताएं मुझे. कंपैरेटिव बजट बता सकते हैं? डिपेंड्स क्या है ना कि इट डिपेंड्स ऑन द स्केल ऑफ अ थिंग. मतलब सिंपल सी बात है ना कि आप एक, फॉर एग्जांपल, आप एक जूता खरीदने जाते हैं, वो जूता 100 रुपए का भी है और मार्केट में इंटरनेशनल लेवल पे वही जूता $1 लाख का भी आता है. अब आपको डिपेंड करता है कि आपकी कितनी कैपेसिटी है और किस तरह से आप उसको प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, कितने कैसे सेटअप पे आप उसको प्रेजेंट करना चाह रहे हैं. वो डिफर करेगा, हर एक लेवल पे डिफर करेगा. आप उसको फिल्म पे बनाओगे तो अलग लोगों के साथ काम करना पड़ेगा. आप उसको बॉम्बे में किसी बड़े एक्टर के साथ बनाओगे तो आपका बजट बदल जाएगा. वो सिर्फ कोई एक फैक्टर नहीं होता है. तो बेसिक्स जो है उनको समझना पड़ेगा कि अच्छा हाँ, अगर मुझे ये चाहिए तो इतने से अराउंड वो बन जाएगा. फिल्में हरियाणा में कुछ फिल्में मैंने सुनी है, कुछ वेब सीरीज बनाई उन्होंने 5-10 लाख, 50-20 लाख में भी बनाई है. और अगर मैं बजट बनाने बैठूंगा तो मैं शायद 2.5 करोड़ का बना दूंगा उनका बजट. दैट डिपेंड्स मैम. Thank you so much, Jaydeep ji, and thank you, ma'am. Thank you so much. And thank you, Taruna ma'am, for giving me the opportunity. Thank you. Thanks to you, ma'am. Thanks. Next हमारे साथ जुड़ रही हैं शुभ तनेजा मैम. शुभ मैम, प्लीज आप अपना माइक ऑन करिए और वीडियो ऑन करिए प्लीज. माइक और वीडियो दोनों ऑन है. शुभ मैम आप हेलो. हाँ जी मैम. हाँ जी. इस्तकबाल, खुशामदीद और एहतराम के बाद जयदीप, ये बात है कि दुनिया मंच की तरह फैली रहती है और वक्त पर्दे की तरह उठता रहता है. और जयदीप तौरे हाजिर में पर्दे की दुनिया का बादशाह हो गया है. और जयदीप, तुम्हारा परिचय किसी का मोहताज नहीं है आज. और मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि एक बार नेशनल यूथ फेस्टिवल में जयदीप मेरे साथ, मैं टीम मैनेजर थी. सुन के मुझे लगा था कि मैं आपसे मिल चुका हूँ. हाँ, तो 4 दिन हम नेशनल यूथ फेस्टिवल में इकट्ठा रहे थे. तो आज मुझे बहुत प्राउड महसूस हो रहा है. और तब भी तुम हीरो थे. नेशनल यूथ फेस्टिवल में भी क्या ऊंचा कद परमात्मा ने तुम्हें दिया था. और जितना ऊंची कद काठी उतनी ही बुद्धि भी तुम्हारी उससे मैच करती थी. और आज जितने सवालों के जवाब तुमने दिए, कमाल की बात है. और मुझे तो यही बात समझ आ रही थी कि जैसे तुम ये कह रहे हो कि सच कहने की कसम खाई है तुमने. सच को सच ही रहने देना चाहिए. कोशिश करता हूँ मैम. हाँ, मैं भी कई बार अपने आप से झूठ बोलना शुरू कर देता हूँ. नहीं मैडम, हीरा इज ऑलवेज हीरा. हाँ, हीरा बिल्कुल एग्जैक्टली. बहुत बढ़िया. और इस हीरे को परमात्मा सलामती बख्शे और बुलंदियों पे ले जाए. मेरा बोलने का कोई मतलब तो नहीं था यहाँ पर, मैं मजबूर हुई कि मैं जयदीप से एक बार
गुफ्तगू कर लूं, बातचीत कर लूं, तो तुम्हें बहुत सारी ढेर सारी शुभ की शुभकामनाएं। सो नाइस। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मैडम मच। मैं इस पे कहना चाहूंगा कि दुआ मंजूर होती है अगर वो दिल से होती है, पर मुश्किल तो ये है कि वो बड़ी मुश्किल से होती है। आपकी ये जो दुआएं हैं जयदीप जो है ना, ये इतना काबिल है कि इसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, मुश्किल इसके आगे छोटी पड़ जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। वेरी नाइस। इसके बाद हम लेंगे एनिमेशन डिपार्टमेंट से एक स्टूडेंट है अंशुल। अंशुल, इफ शी इज प्रेजेंट, अंशुल प्लीज ओपन। If she is not, then Dr. Bindu Mangla है, तो Dr. Bindu Mangla केमिस्ट्री डिपार्टमेंट morning, से sir. है। हेलो Yes, सर, sure. आई होप यू कैन हियर हेलो मी। सर, हेलो सर। अंशुल सर, एक तो आपको देख के बहुत खुशी हो रही है। अच्छा सर, आपने जिस तरीके से आज यहाँ क्वेश्चंस के जवाब दिए ना, मुझे लग रहा है कि आप वही सिचुएशन फेस कर रहे हैं जो एक दिन मंटो सर ने भी की थी अपने जमाने में। राइट, एग्जैक्टली राइट। नहीं, खैर उतनी मुश्किल तो नहीं है, यहाँ तो फिर भी बहुत आसान है। और जितने लोगों ने पूछा उनके लिए मेरे मन में ये आंसर है कि रियलिटी तो रियलिटी रहेगी ना, उसे एक्सेप्ट करना सीखना पड़ता है। या तो मानो या मत मानो, पर आपके कहने से जैसे बीच में डॉक्टर साहब मैम आए थे, वो कह रहे थे कि आई थिंक इट्स टू मच ऑफ रियलिटी। there is no such thing too much of reality. What is reality. It cannot go beyond the realism, na. There is no term too much of realism. We can live in the world of candies and unicorns. If you want to accept that, very good. If you don't want to accept that, good for you. Nobody is actually blaming anyone. Okay sir, so आपकी जो सीरीज है, मैंने अभी उसके 3 एपिसोड देखे हैं, but I loved your work. मेरा सवाल ये था सर कि मैंने नोटिस किया है जो वेब सीरीज होती है, इनमें ऐसे लोगों को मौके मिलते हैं जिन्हें आप यूजुअली प्रोटैगनिस्ट या फिर फ्रंट लाइन पे नहीं देखेंगे, चाहे वो हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर हो जाएं, चाहे मनोज वाजपेयी सर हो जाएं, और अभी जो एक सीरीज आई थी नेटफ्लिक्स पे जामतारा, उसमें बहुत सारे नए लोगों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली। इन लोगों को अगर आप बॉलीवुड से या टेलीविजन पे कंपेयर करें, यू विल नेवर सी दीस गाइज ऑन फ्रंट लाइन। यस, दे विल गेट रियली गुड रोल्स, really good side roles most of the time, but most of the time you will not see them on front line. ये क्या कोई एडवांटेज है एक वेब प्लेटफॉर्म का, या इसका कोई और रीजन है? क्योंकि अगर ये एडवांटेज है तो आई थिंक इट्स रियली गुड। दो चीजें हैं जो मुझे लगता है जो बड़ी ही साधारण फौरी तौर पे जो देखने में आती है, वो ये कि आप ये ट्रेंड वर्ल्ड वाइड है। क्या होता है, जो आप बहुत कम ऐसी वेब सीरीज बाहर की या वैसे डॉक्यू ड्रामा देखने को मिलेगा आपको, जो कि वहाँ के जो रेगुलर जो फिल्म स्टार्स हैं वो आपको उनमें दिखाई दें, क्योंकि वो बहुत छोटा मीडियम है और वहाँ बहुत कम लोग उस लेवल पे पहुंच पाते हैं जहाँ पूरा एक स्टारडम का जो लेवल है ना, वो सिर्फ आपकी कहानियों के स्टार किसको बोलते हैं? स्टार उसको बोलते हैं जिसका चेहरा जो है वो लोग उसके साथ जुड़ जाएं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टोरीज। अगर कहानी के ऊपर ही फिल्म चलती है तो फिर स्टारडम वर्क नहीं करता। स्टारडम का मतलब ही यही है कि किसी आदमी का चेहरा इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि उसकी छोटी मोटी कमियां वमियां आप छोड़ देते हो। तो वो एक चीज जो है वो वेब सीरीज में इसलिए इस्तेमाल नहीं होती है क्योंकि वर्ल्ड वाइड आप देख रहे हो। आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ का कोई भी फॉर एग्जाम्पल कोई स्टार है और उसको बहुत सारे देशों में लोग नहीं जानते होंगे, उनके लिए चेहरे का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया है। जो इम्पोर्टेंस सिनेमा में होता है जब आप अपने किसी भी देश में जब वो काम कर रहा होता है, तो वो जो चेहरे का इंपॉर्टेंस है वो उतना नहीं होता है। आपके देश के लिए होगा लेकिन सब जगह के लिए नहीं होगा। तो बात आ जाती है फिर कहानी पे, फिर कैरेक्टर्स के ऊपर, किरदारों के ऊपर, वो कैसे लिखे गए हैं। और ऐसे बहुत बड़ी बड़ी वेब सीरीज हैं वर्ल्ड वाइड जो आप देखोगे, उनको कहीं नहीं देखा था किसी ने भी, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, एंड सडनली दे बिकम द वर्ल्ड वाइड सेंसेशंस। तो ये एक तरीका भी है क्योंकि अभी यहाँ उस तरह से लोग अप्रोच नहीं करते हैं। आई थिंक इस प्लेटफॉर्म को लोग उस तरह से अप्रोच नहीं करते हैं कि स्टार्टअप वाले फेज में। यहाँ कंटेंट ही हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें जिसको जो फील होगा वो बेटर उस तरह से, मेरे ख्याल से उस तरह से कास्टिंग होगी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि पहले कहानी होती है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली आप किरदार चुनते हो, एक्टर चुनते हो।
दूसरा तरीका ये है कि आपने एक्टर चुन रखे हैं, फिर उसमें आप कहानी घुसेड़ दो। तो आई थिंक पहला तरीका इज मच मोर रेलेवेंट, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। ठीक है। सर एक क्वेश्चन मैं भी पूछना चाहती थी। मैडम सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जयदीप जी से और पवन जी से बात करते करते मन तो कभी भरेगा नहीं हमारा। मेरे ख्याल से हम पूरा दिन चला सकते हैं इस प्रोग्राम को, पर मुझे लग रहा है कि पर थोड़ी समय की भी हमारी रिस्ट्रिक्शन है। ये प्लेटफॉर्म इसके बाद एक और मीटिंग शेड्यूल होगा। तो मैडम आप एक दो क्वेश्चन और लेके ना इसको आप नेक्स्ट फेज पे लेके चलिए। थैंक यू। राइट सर, मेरा ये था कि हरियाणवी डायलॉग्स बहुत अच्छे से लिखे गए थे आपकी पाताल लोक सीरीज में। तो सर ये डायलॉग्स डायलॉग राइटर ने लिखे थे या आपने इसमें अपने इनपुट्स दिए थे, इम्प्रोवाइज करवाया था? कुछ लिखे हुए थे, लेकिन वो हरियाणवी में नहीं लिखे हुए थे। जितने डायलॉग थे वो हिंदी में थे। अच्छा। और उनको फिर तब्दील किया गया। मुझे कम से कम इतनी छूट थी। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के सारे सवाल जो है ना सुदीप सर से पूछे जाने चाहिए थे, जो हमारे क्रिएटर हैं इस शो के। इज अ ग्रेट राइटर, इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। वेरी गुड, नो डाउट। और तो बट मैं उनकी तरफ से आज कोशिश कर रहा हूँ इसको सवालों का जवाब देने की। बट उन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ था, लेकिन उन्होंने कम से कम ये मुझे जरूर छूट दी कि सर जो आप करना चाहो आप करो। तो उसमें बहुत सारे, अब वो ऐसी लैंग्वेज है जिसको मेरे से बेटर वहाँ कोई नहीं समझ सकता था। हाँ, ये तो है। तो फिर वो चाहे छोटी छोटी चीजें हों, छोटी छोटी लाइनें हों, वो सब डाले गए। Right. So how was the relationship of Hathiram, Inspector Hathiram, with his child, with his own son? एक जगह पर आपका चित्रकूट में डायलॉग आता है कि सारी जिंदगी में अपने बाप की आंखों में देखकर जिया, अब मैं अपने बेटे की आंखों में नहीं देखना चाहता। जी। तो सर कैन यू एक्सप्लेन लिटिल बिट दिस थिंग? जी, मुझे लगता है कि जब ये कहानी मैंने पढ़ रहा था ना, मेरे लिए ये डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो जो फेलियर देखा है ना उसने अपने पिता की आंखों में, कि उसको लगता है। और क्या होता है ना मैम, एक जनरल वो है, हर बेटे के लिए ना उसका बाप सुपर हीरो होता है। हम सब ये मानते हैं कि हमारे पिताओं ने जो किया हमारे लिए वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। और ये भी एक फैक्ट है कि वो जो एक उम्र होती है ना, 14, 15, 16 साल की उम्र होती है, जनरली उस वक्त घर के जो लड़के होते हैं ना, वो पिताओं से थोड़ा कट के रहना शुरू करते हैं, थोड़ी बातचीत कम होती है। तो ये बड़ा खूबसूरत है, स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज में ये होता है कि मैं जब 15 साल का था, मुझे भी लगता था कि यार आई नो मच बेटर देन माय फादर, ये होता है किसी भी हर जनरेशन के साथ होता है, वो है। हाँ, ठीक तो बात है। तो उनको फिर जब 15 साल बाद समझ में आता है, नहीं यार बाप है, उसको बहुत कुछ पता है, वो तुम्हें बड़ा होने की एक तरह से अपॉर्चुनिटी दे रहा था। बट इन एनी केस वो लाइन बहुत ही खूबसूरत है। और आई थिंक वो ड्राइविंग फोर्स थी। होते ना किसी कैरेक्टर के एक ड्राइविंग फोर्स होती है कि वो अपनी काम को क्यों एक लिमिट तक यहाँ तक खींच लाया कि अब वो अब तो जान खतरे में है, सिर्फ नौकरी नहीं है, जान खतरे में है। नो डाउट। तो अब उसके लिए आई थिंक इस तरह से जीना कोई मायने नहीं रखता कि जहाँ वो ये भी ना देख पाए कि उसके बेटे, कम से कम उसका बेटा उसकी इज्जत करे। इतना तो चाहिए लाइफ में। तो बात सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई है। राइट, वेरी नाइस। तो वी हैव मोर स्टूडेंट्स विद अस। एक एनिमेशन के स्टूडेंट है अजय, बीएससी एनिमेशन से, हम उसको लेना चाहेंगे। अजय प्लीज अनम्यूट कर दीजिए अजय का माइक। हेलो। हाँ जी। नमस्ते सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आई एम योर बिग फैन फ्रॉम मेरिटिया गैंगस्टर मूवी। थैंक यू अजय। सर माय क्वेश्चन इज दैट कि आजकल बहुत ऐसे हैं जो युवा हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं, जो अपना अभिनय करना चाहते हैं, बट उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती हैं। और वो बहुत हैं जो ऐसे जो स्ट्रगल से डरते हैं, काफी डरते हैं, क्योंकि आपको पता ही है हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो उनको स्ट्रगल से डर लगता है, कुछ फैमिली कंडीशंस भी ऐसी हो जाती हैं कि वो थोड़ा स्ट्रगल करने से कतराते भी हैं। तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? पहली बात तो यार, डर के तो कोई भी लड़ाई कभी जीती नहीं जाएगी। अब ये सोचा जाए कि लड़ाई बहुत बड़ी है और हम नहीं लड़ेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा लड़ना पड़ेगा, तो ये तो शुरुआत ही गलत है। इसका मतलब आप ऑलरेडी सही रास्ते पे नहीं है। दूसरी बात ये कि अब तो बल्कि एक्टर बनना आई थिंक पिछले 15-20 साल पहले शायद बहुत मुश्किल था, अभी उतना मुश्किल नहीं है अगर आप जेन्युइनली वो करना चाहते हैं। आप यार दूसरे एक तो क्या अपॉर्चुनिटीज इतनी है। आप लोग
अपने हाथ से फोन से फिल्म बना पा रहे हैं यार अभी, पहले कहाँ होता था। तो अगर जेन्युइनली चाहते हैं कि वो एक्टर बनना है, तो एक तो घर में प्रैक्टिस करने के इतने सारे साधन है, किताबें हैं आपके पास कैमरा है फोन में, आप उसको शूट कर सकते हैं, और आपने दूसरे एक्टर्स के साथ, जो भी एस्पायरिंग एक्टर्स है, वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो आई डोंट थिंक कि कोई बहुत ज्यादा देखो स्ट्रगल तो है इसमें, तो कोई डाउट नहीं है ना, क्योंकि लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं इस प्लेटफॉर्म पे, इस फील्ड में जो अच्छा करना चाहते हैं। बट अगर यही डर रह गया कि हाँ बहुत ज्यादा स्ट्रगल और इससे बाहर नहीं निकलना, तो फिर डेफिनेटली कुछ और देखना पड़ेगा, क्योंकि डर से तो कोई लड़ाई कभी जीती गई ही नहीं गई ना लाइफ में। दुनिया में कोई लड़ाई नहीं जीती जाती बिना डर के, डर के साथ तो डर निकालो, अपना काम करना शुरू करो, अपने ऊपर मेहनत करो, धीरे धीरे डर भी खत्म हो जाएगा। भय जो है ना वो अज्ञात से होता है, भय जो है वो नॉलेज के साथ कभी भी उसका रिलेशनशिप नहीं होता है। नॉलेज और भय साथ साथ नहीं रह सकते। तो या तो फिर आप अनभिज्ञ हैं कि आपको करना क्या है, और अगर आपको ज्ञात है, फिर आपको भय नहीं हो सकता, मेरा ये मानना है। क्योंकि डर के आगे जीत है। हाँ, राइट। नहीं, बहुत अच्छी इंस्पायरिंग थी आज आपके साथ बात करना। नो डाउट राजू सर ने बिल्कुल सही कहा कि हम सुबह से शाम तक भी लगे रहेंगे तो ये हमारा डिस्कशन कभी एंड नहीं होगा। तो समवे एक एंड भी जो है वो एक तरीके की नई स्टार्टिंग होती है, तो हम इस प्रोग्राम को एंड करेंगे और नई स्टार्टिंग के लिए मूव करेंगे। तो ओवर टू यू सोनिया। Thank you so much, ma'am, for moderating the session. Now I request our worthy registrar, Sir Dr. Sunil Kumar Garg, to propose the vote of thanks. Hello. Am I audible? Yes, sir. Good afternoon, everyone. Afternoon, the sir. end of the story is a new beginning for many others. On this note, let us conclude a remarkable, memorable, and knowledgeable webinar on Cinema Banam web series, Avsar aur Chunautiyan, organized by Faculty of Liberal Art and Media Study of J.C. Bose University of Science and Technology, YMCA, Faridabad. I, on behalf of J.C. Bose University, along with faculty member and students, and on my own behalf, propose a very hearty vote of thanks. A special thanks and gratitude to our Honorable Vice Chancellor, Sir, Professor Dinesh Kumar Ji, for giving us his valuable time and motivate and guide us to organize this kind of webinar. It is always a pleasure to listen to you on any subject. And sir, it is you who created this department of liberal art and media study, and in a very short span of time this department has taken this shape, and presently we are able to organize this type of seminars, and it is now full-fledged department. Thank you very much, sir. A hearty thanks to our special invited guest, Dr. Pawan Singh Malik, Media Faculty, Makhanlal Chaturvedi, National University of Journalism, Bhopal, and Shri Jaideep Ahlawat Ji, a very well-known Bollywood actor who has acted in both cinema and web series. I can take the name that Commando, Raji, and web series we can talk about Patal Lok, latest one. And you can know his popularity that some of the participants have registered with the name Hathiram Chaudhary or Patal Lok in this webinar also. तो मैं पवन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपकी वजह से ये वेबिनार ऑर्गेनाइज हो पाया, और हम जयदीप अहलावत जी से आज बात कर पाए। स्पेशली थैंक्स टू जयदीप कि जयदीप ने समय दिया हम सबको। हाँ, और मैं ये चाहूंगा कभी ठीक हो जाए, सब स्थितियां सामान्य हो जाएं, तो आप जयदीप जी से कहिएगा कि वो YMCA यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट करें। आपके साथ अगर हम उनसे मिल सकें तो बहुत अच्छा रहेगा, ये हमारे विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा रहेगा। आई एम थैंकफुल टू
Professor Atul Mishra, Dean Faculty of Liberal Art and Media Study, along with his team for successfully organizing this event. In the end, I am thankful to all the participants for making this webinar successful by their participation. Thank you once again, all of you, and wish all of you be safe and healthy. Jai Hind. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. sir. थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू पवन जी, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद यू आपका। डॉक्टर साहब। थैंक यू धन्यवाद। जयदीप जी। जयदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आने पे, हमारे फैकल्टी के बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए, और आपकी गाइडेंस और सपोर्ट हमें हमेशा मिलता रहे, यही हमारी आशा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू जयदीप। थैंक यू। थैंक यू। सोनिया जी बोलिए। Thank you. सोनिया जयदीप जी और पवन जी, आपका बहुत बहुत आभार यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सोनिया जी। अब आपका ऑटोग्राफ कैसे ले सकते हैं यहाँ से? कोई नहीं सर, ज्यादा अभी मैं ठीक ठाक है, तो होप सो कि पवन जल्दी जी से खुल जाए कहूंगा, सब। डॉक्टर सर साहब बच्चे ग्रुप फोटो की बात भी कर रहे एक बार बुलाएं। आएंगे किसी दिन, फरीदाबाद ज्यादा दूर नहीं है रोहतक से, डोंट वरी सर। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक्चुअली स्टूडेंट्स आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप फोटोग्राफ। कैसे हो सकता है? इस पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हाँ, स्क्रीनशॉट्स ले लिए सर, स्क्रीनशॉट्स ले लिए हमने। स्क्रीनशॉट्स ले लो आप। तो एक बार सब लोग अपने कैमरास ऑन कर लो, एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। सारे लोग अपने कैमरास ऑन कर लो। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं अपने अपने कैमरास ऑन कर सकते हैं, तो एक स्क्रीनशॉट हो जाएगा। अच्छा, इस स्क्रीनशॉट में जयदीप को अंडरलाइन कर देंगे, नहीं तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, दैट्स फाइन। कलर में यही है इकलौते, चिंता मत करिए। विशाल, शिवानी, आप लोग को होस्ट है, आप लोग वीडियो ऑन कर दे जिसकी नहीं हो रही है। मैम ऑन है वीडियो, ये मौका कौन ही मिस करेगा। सर पाताल लोक की सेकंड सीरीज आएगी क्या? सर बात तो चल रही है, देखता हूँ, अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास, मतलब ऐसा मैं अपनी तरफ से नहीं कह सकता, लेकिन सुना है कि ऐसा चल रहा है बातचीत थोड़ी। सर क्वेश्चन सेशन खत्म हो गया, बस एक बात कहनी थी मुझे आपसे। हाँ जी। कि लोगों को ना आदत हो गई है पॉजिटिविटी को ही लेने की, वो चाहते ही नहीं कि रियल चीजें हो रही है ना उनको एक्सेप्ट करें। तो कहीं Not my problem, ma'am. I'm just saying not my problem because I can't do that. मैं मेरे साथ ये होता ही नहीं है। Exactly sir, वही। ये कैसे हो सकता है कि आप सिर्फ मोर पंख देखते रहो और आंसू ना देखो मोर के, ये तो होगा नहीं ना। वही तो सर, तभी तो जो मंटो साहब की जो बात कही थी, वो भी तो ये सब करते थे, तो उनपे लोग सवाल उठाते थे। बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब रुक जाएंगे। नहीं, क्या भाग नहीं पाओगे आप? कितनी देर तक ही भाग पाओगे आप? सच्चाई से बताइए। जी वही। अभी ना कभी तो सामने आके खड़ी होगी ना वो। तो जितना बेटर है, जितना जल्दी एड्रेस कर लोगे। इतनी छोटी सी बात है, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, इतनी छोटी बात है कि अगर आपको फील हो रहा है कि आप मोटे हो गए हो, तो पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आप मोटे हो गए हो, उसके बाद ही आप काम कर पाओगे अपने फिटनेस पे। सर जब तक आप खुद को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, तब तक तो अगर कोई कहेगा तो आपको इम्पैक्ट पड़ेगा ही। हाँ जी सर, वही। तो सर रुकना नहीं है सर, और अच्छी चाहिए हमें सीरीज। बिल्कुल, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे जी। जी सर, थैंक यू सो मच। क्या होता है ना कि ये एक्टर तक बहुत लेट आती है बात, ये ऑलरेडी बन चुका होता है, हमें तो खाली उसमें, अब अगर उसमें आत्मा फूंकने वाली बात है तो वो उतना ही जॉब है हमारा, तो हमने तो लिखे नहीं है। पर फिर भी अगर मेरा बिलीफ नहीं है तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा करना। सर आजकल जैसे मैं ऐसे वेब सीरीज बहुत देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है सिनेमा से भी ज्यादा ना वेब सीरीज का कंटेंट बहुत स्ट्रांग होता है। और उसमें कोई रोक नहीं है, सेंसर बोर्ड नहीं है, तो वहाँ पे ना ज्यादा अच्छा दिखाया जाता है, रियलिटी को भी ज्यादा अच्छा पुटअप किया जाता है, आपको ज्यादा रिलेटेबल फील होता है। हाँ सर, वही मेरा ये मानना है कि मीडिया के स्टूडेंट होते हुए ना ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप मीडिया के आदमी हैं, मीडिया के स्टूडेंट हैं, और आपको बुरी चीजें दिखाई ना दे रही हो। वही तो सर, वही तो बात है, पॉसिबल नहीं है। हाँ जी सर, एग्जैक्टली। मतलब हर साइड देखना चाहिए, सिर्फ एक ही साइड को लेके आगे नहीं चलना। आपका काम है दिखाना लोगों को दोनों तरीके की साइड, उनको ये नहीं बताना है कि क्या सही क्या गलत। आप सच के पुरोधा हैं,
बस इतना ही तो है। और सर आपने जो एग्जांपल देके जवाब दिए ना वो बहुत ही बेहतरीन थे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Thank you, Pawan. Thank you. Thank you so much for session. Thank you so Thank much. you so much. Please take care, Thank you stay so safe, much. सबके सब लोग। Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू एवरीवन। मीटिंग एंड करते हैं हम लोग। राइट सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।